Karachi, Lahore, Multan, Faisalabad, Islamabad, Peshawar, Sialkot, Bahawalpur. You're listening to me, then you're listening to your own show. Right then, ladies and gentlemen. Yes, if you want to give me a call, then dial me up 021387091188. And I'm not really feeling well, but the show is going to be there. Raj Kapoor Sahab कहते the show must go on, so the show is going on. This phone, ये वाला phone. The show must go on, so not this one, the other one. Thank you. The show is going on. If you want to give me a call, dial me up. It is hold on one second. Hold on. It is 021387091188 is the number to call. All right, who is this? Raza is saying, as always, inspiring, keep inspiring. Thank you, Raza. Bahut shukriya. I want to say a shout out to Sam Kerwood. Sam, if you're listening to me, then yo, what's up? How's Graham? Do let me know. And it's kind of nice to be doing the show. I am grateful. I'm really, really, really grateful. Don't do this. Yes. What is it? No, it's good. Thank you. All right, G. All righty then. All righty then. अच्छा, कमाल फारिग लोग हैं, फारिग कौम, मतलब हम लोग कमाल लोग हैं ना, कुछ भी बोलते हैं. Okay, wow, cool. That's very, very nice. हमारे यहाँ Instagram हो, Facebook हो, Twitter हो, इंतहाई कमाल चीजें. इतनी अच्छी लैंग्वेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं. It is really, really nice. Good to know. But the worst part is, and the best part is, that's how you make money. I'm really sorry. This is ridiculous. This is ridiculous. It is just amazing to think that क्या है, मतलब आज हम लोग एक छोटा सा इशू था IT का जो हमारे साथ कंपनी के अंदर था, तो we were trying to resolve it and then we started talking about something and अच्छा, मैं बहुत ज्यादा मामलात में बोलता नहीं हूँ. जो मेरे CEO हैं वकार एंड देन हमारे जो आउटसाइड कंसल्टेंट्स हैं उसमें her name is बीबी, we call her बीबी, राहिला. She is wonderful. तो वो अक्सर conversations जो हैं उसको लीड करती हैं. तो and she's extremely capable. She's one of the most smartest people I've ever met and I think बहुत ज्यादा hardcore जो honest workers होते हैं वो उनमें से हैं. Yeah, it doesn't really matter to her कि उनका designation क्या है, उनका ओहदा क्या है. All she wants is to make sure कि वो जो कुछ भी कर रही हैं वो 100%, 1000, 2000, 3 gazillion% उसको dead honesty के साथ करें. This is exactly how it is. तो मैं usually conversations में involved नहीं होता. मेरा तो एक ही criteria है. Are we making money? If we're making money, we're good. If we're not making money, we're not making money. Then we're bad. So that's my criteria. Well, it's not good, but yeah, that's the thing. Because see, the thing is, I have to write checks for a little over 150 people. So जब आपको ये लिखना पड़ता है तो फिर आपको फिक्र भी उसी चीज की होती है. तो हम लोग बात कर रहे थे सारे के सारे लोग, तो अचानक से we all started talking about what's wrong with us. हमारे साथ क्या गलत है. And then we realized there is nothing wrong with us. We want everything to be wrong with us. There's nothing wrong with us, but we want everything to be wrong with us. The reason is because हम sympathy के अंदर फखर महसूस करते हैं. अगर कोई हमसे बोले ना, ओ तुम लोग ऐसे हो, तुम हमें बहुत अच्छा लगता हमको. We don't want to stand on our 2 feet. We don't. Right now the political situation is horrendous, horrible. Nawaz Sharif साहब is ready to come. वो 15 सितंबर तक आ जाएंगे and खान साहब की सारी टोन चेंज हो गई है. सारे PTI वाले अलर्ट हो गए हैं. उनको ये पता है बहुत अच्छी तरह से किसी लम्हे भी उठाए जाएंगे और फिर जब वो उठाए जाते हैं तो फिर वो तस्वीरें दिखा भी नहीं सकते. मैं आपको बता रहा हूँ. तो ये सारी ट्रोलिंग जो थी वो पता नहीं कहीं चली गई है. बिकॉज ये ट्रोल अब लोगों को कर सकते हैं, इदारों को तो कम से कम नहीं कर सकते. एंड दैट वाज रियली बैड टेस्ट इन माय माउथ एंड एवरीवन एल्स आल्सो. आप नहीं कर सकते ये, जबकि इदारे ही आपको लाने वाले होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ही आपको लाने वाली होती है. फिर जब उनसे आपकी बातें डील नहीं होती तो फिर उसके बाद आप उनको बुरा भला कहना शुरू कर दें तो ये बात गलत है. बट नॉनदलेस एट द एंड ऑफ द डे एहतराम बहुत जरूरी होता है एक दूसरे का, और समहाउ हमारे यहाँ एहतराम एक दूसरे का अब जा चुका है. द काइंड ऑफ लैंग्वेज वी यूज, it's ridiculous. The kind of language we cater to now, वो कमाल ही हो चुका है.
खान साहब ने जलसों का ऐलान कर दिया तो गुड लक विद ऑल दैट, बिकॉज पहले हमारे पास फरावानी है रिस्क की और मतलब चीजें बहुत सारी हैं, उस पर जलसे भी हो जाएंगे तो शहर को अगर 1-2 दिन के लिए बंद कर देते तो क्या फर्क पड़ने वाला है. यू गेट द पॉइंट राइट. इट्स अ बैंटर, इट्स सार्काज्म. खुदा का वास्ता ये सब मत करें. और वैसे भी खान साहब की रीच इतनी ज्यादा है कि अगर वो ट्विटर पे बैठ जाएंगे या फेसबुक पे बैठ जाएंगे तो पूरी कौम से खिताब कर सकते हैं. लिटरली मैं बता रहा हूँ, ही इज दैट पावरफुल. तो मेरे ख्याल में उनके लिए वो बहुत अच्छा है, बजाय इसके कि इतना वो जितने पैसे जलसों पे खर्च होते हैं ना, उतने पैसे मेरे ख्याल में अगर पीटीआई फलाह के काम करने शुरू करवा दे तो मेरे ख्याल में पीटीआई से बड़ी जमात कोई भी नहीं होगी. आज भी मेरे ख्याल में पीटीआई से बड़ी जमात तो कोई भी नहीं, बिकॉज आई थिंक अगर ट्रूली किसी को मुल्क गिर जमात कहा जा सकता है इस वक्त, except with the exception of बलूचिस्तान, I think that's PTI. वो जरूर है. मुस्लिम लीग नून इस मामले में जरा पीछे है और पीपल्स पार्टी तो जाहिर है डेफिनेटली दे उनके लिए बड़ा एक सब्र आजमा इम्तहान होगा. ये वाला इलेक्शन जो है ये बहुत बड़ा इम्तहान होगा. बट तमाम लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, खुदा का वास्ता मुल्क को बंद ना करवाइए. ये जलसे, पार्टियां, ये सारे एजेंडे वेजेंडे, आप तो अगर खिताब भी करने जाएं तो आप तो रिकॉर्ड बनाते हैं और मतलब मेरे ख्याल में पूरी कौम जो है वो लाइव आपको देख लेती है. आई डोंट थिंक पीटीआई नीड्स एनी जलसास एनीवेयर और पीपल टुगेदर एनीवेयर. और जो फोर्स आपके पास है वो शायद कम लोगों के पास है. सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसका खान साहब को कोई मशवरा दे दे, इसका फायदा उठा ले. उसका फायदा ये होता है कि देखें शहर बंद नहीं होता, कंटेनर्स नहीं लगते, सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं होते और मुल्क की मईशत जो है वो चलती रहती है. तो मेरे ख्याल में ये बड़ा जरूरी है. और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान है, बिकॉज 9 सीटों पे खान साहब जो है वो खड़े हो रहे हैं. और अब ये मुझे नहीं पता कि 9 की 9 सीटों पे वो कामयाब होते हैं या नहीं होते. मेरे ख्याल में हो ही जाएंगे, लेकिन मुझे ये फिलॉसफी की लॉजिक समझ नहीं आ रही, बिकॉज अगर वो कामयाब हो भी जाते हैं तो वो सीट तो एक ही रख सकते हैं, बाकी छोड़नी पड़ेंगी. तो फिर क्या होगा? फिर उन पर इंतखाबात होंगे, क्या फिर वो दोबारा लड़ेंगे? मतलब दिस इज काइंड ऑफ आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट. लेकिन आई गेस उनके कोई जो उनको जिन्होंने उनको मशवरे दिए हैं वो शायद इसमें कोई लॉजिक समझते हों. अगर वो ये साबित करना चाहते हैं कि बाय फार वो एक पॉपुलर लीडर हैं तो वो ऑलरेडी साबित कर चुके हैं. उसमें खान साहब को कुछ प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है. मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब को ये प्रूव करना भी चाहिए और इतनी छोटी छोटी सी बातों पे वो तवज्जो भी दें, बिकॉज आई थिंक ही इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर पाकिस्तान हैज एवर सीन. तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. तो मुझे पर्सनली ये फील होता है कि इनको अपने एडवाइजर्स पे देखना चाहिए, उनको चेंज करना चाहिए, बिकॉज अगर ये चेंज नहीं करेंगे तो ये आखिर में ना बहुत अभी आपने हशर देख लिया ना क्या हुआ है. लेकिन वन थिंग आई मस्ट से, आई कंडेम द वे शहबाज गिल साहब के साथ. देखिए आप उनसे लाख इख्तलाफ कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन ये गलत है. जिस तरह से ये हो रहा है ये गलत है. अगर आपको इवन उनको कस्टडी में भी रखना है तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, आप उसको जरूर फॉलो करें. और दूसरी बात ये है कि इट्स रियली बैड, रियली बैड. आई डोंट थिंक दिस शुड बी परमिटेड. It should always be prevented. I think PTI के जो लोग हैं उनको बात करनी चाहिए, दोनों इदारों से बात करनी चाहिए, विफाक से भी बात करनी चाहिए और पंजाब गवर्नमेंट से भी बात करनी चाहिए. And then they have to protect शहबाज गिल as much as possible. लेकिन जाहिर है विफाक का जो स्टांस है वो उस पर बिल्कुल अलग है. वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें हमें एक साजिश की बू नजर आती है, इसमें हमें कहीं और से ताने बाने मिलते हैं. तो आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू बी. और ये विफाक का पूरा राइट है कि वो इसको सर्च करे. लेकिन मेरे ख्याल में जो तशद्दुद वाला आंसर है वो माई रिक्वेस्ट राना सनाउल्लाह साहब के वो उसको हटा दें. बिकॉज वो जब आए थे तो उन्होंने कहा था और वो बदले की सियासत नहीं करेंगे. तो आई होप दिस इज नॉट बदले की सियासत. और अगर ये मतलब हटा देंगे तो मेरे ख्याल में वो उनकी रिस्पेक्ट में इजाफा होता है, वो कमी नहीं आ जाती. और जाहिर है अगर हम ये चीज जो है ये इसको प्रिवेल करते रहेंगे कि या प्रिवेल होती रहेगी हमारे यहाँ कि नहीं आज इनकी गवर्नमेंट है, कल अगर खान साहब दोबारा आ जाते हैं तो फिर इन लोगों के लोग उठेंगे. वैसे खान साहब के दौर में भी बहुत कुछ हुआ है, सहाफियों पे बहुत कुछ हुआ है. मोतीउल्लाह जान साहब समेत और बहुत सारे लोगों पे बड़ी बड़ी पाबंदियां लगी हैं. तो यार ये तो मतलब ये टिक टैक टो का खेल है. एंड दिस इज रियली बैड. बट खान साहब प्लीज अंडरस्टैंड दिस. मेरे ख्याल में कुछ तो आपको अवेयरनेस तो है और कुछ मुझे लग रहा है कि आपकी बातों से भी लग रहा है कि आपको या जब आपके बहुत सारे खैर ख्वाह आपसे कह रहे थे कि यू नीड टू चेंज योर एडवाइजर्स, तो उस वक्त शायद आपने हमारी इतनी बातों को अहमियत नहीं दी होगी. पीपल हु लव्ड यू एज अ क्रिकेटर, पीपल हु लव्ड यू एज अ ह्यूमन बीइंग and they wanted you to be successful, वो तमाम के तमाम लोग, whether they were in Tehreek Insaf or not, they prayed for you, they voted for you, they wanted you to be successful. उन तमाम लोगों ने आपको यही मशवरे दिए थे कि प्लीज अपने एडवाइजर्स जो हैं उनको चेंज करें. ये खुशामदी टोला एक है आपके साथ, सर माफ कीजिएगा.
और बड़ा जबरदस्त किस्म का खुशामदी टोला है ये. जैसे आप इलेक्टेबल्स कहते हैं ना, ये वो सारे इलेक्टेबल्स हैं जो बाहर से आए हैं. मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो तहरीक इंसाफ के साथ डे वन के साथ जुड़े हुए हैं, उनको नहीं बोल रहा. वो अगर आपके साथ रहते हैं तो बिल्कुल सही रहते हैं. देयर आर अदर पीपल, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ. कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी बरसों की खान साहब के साथ पार्टनरशिप है इसमें तहरीक इंसाफ के अंदर. उनका खून पसीना जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए लगा है. डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो खान साहब को बहुत पहले से जानते हैं. हुमायूं मोमिन इज वन ऑफ दोज पीपल, तो ये तमाम लोग वो हैं. और देयर आर फ्यू अदर पीपल जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ा काम किया. कहने की बात क्या है कि ये तमाम लोग तो ठीक हैं, बट फिर उसके बाद इलेक्टेबल्स आते हैं ना, वो इलेक्टेबल्स जो इलेक्शंस के नाम पे आते हैं कोर्ट एंड कोर्ट्स, और आने के बाद जो तहरीक इंसाफ का असल कारकुन है उसका हक भी मारा जाता है. वो कुर्बानी इसलिए देता है कि उसको पाकिस्तान का फ्यूचर अजीज होता है. लेकिन वो जो लोग आ रहे हैं खान साहब, उनको पाकिस्तान के फ्यूचर से कोई ताल्लुक नहीं होता. वो आपके जरिए कहीं पहुंचना चाहते हैं और वो पहुंच जाते हैं. आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ. सर किसी ने जिंदगी में 70 लोगों के साथ खिताब नहीं किया, आपके सामने कुछ 70,000 के क्राउड से खिताब कर लेता है. आई एम रियली सॉरी, आई एम जस्ट बीइंग वेरी वोकल, बट दैट्स व्हाट द ट्रूथ इज. तो you need to do something about it. I'm just requesting, that's all. जी, once again welcome back. 021387091188 is the number to call. Once again दोबारा नंबर दे रहा हूँ to call me. 021387091188 is the number to call, and let's see who this is online. अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air. वालेकुम सलाम. साल भाई मुबारक हो आपको. आपको बहुत मुबारक हो. किस चीज की? आपको मुबारक. कॉल लगी आपकी. मेरी कॉल लगी? नहीं, आपकी कॉल लगी है. हाँ मेरी कॉल लग गई. तो मुझे भाई आपका कल नहीं परसों जो प्रोग्राम चल रहा था ना, आप बोल रहे थे मुझे थोड़ी बहुत हिंदी समझ में आती है, मैं आपसे एक दो सवाल करूँ, आप बताओगे? अल्लाह ताला रहम करे. ओके बताइए. नालो छा है? साहिल लोधी. साहिल लोधी. गोट केड़ो असल गोट? मुझे गोट कराची. वेरी गुड. भाई मसला क्या, आपने रात को जो गाना भाईजान ने सुनाया था ना अपना भाई मुराद का, हाँ, पहली मिसरा आपने सुनाई नहीं. पहली मिसरा है ओ कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो माँ लेना मत खाइयो. सबने वो मसूद राना साहब का हमने सबने सुना है, लेकिन हमने खुद उसको जानबूझ के नहीं किया था. वो थोड़ा सा सुनाओ गाना. ये सुनाओ गाना सुनाओ. आप सुनाए ना सर, क्यों नहीं सुनाएंगे? सुनाए, बिल्कुल सुनाए. तो ये गाना आपने रात को गाया था, मेरे दिल की आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा, ये तो है गाना. वो तो सर सुनाए ना, आप भी तो सुनाए ना सर. सुनाओ. हाँ, मेरी आवाज सही नहीं है साल भाई. अरे भाई मैं इतने सालों से गा रहा हूँ, जब मेरी आवाज ठीक नहीं और मैं गा लेता हूँ तो आप भी गा लोगे. गाइए. चलो सही है. कागा सब तन खाइयो, कागा सब तन खाइयो, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो माँ जी दोने ना मत खाइयो, मेरी पिया मिलन पिया, मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार. वेरी नाइस. मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा, दूर से जाने वाले पंछी देखा जा पैगाम मेरा, मिल जाए तो इतना कहना. वेरी नाइस. भाई वेरी नाइस, वेरी नाइस. आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया. और सबसे बड़ी बात ये, आपको वो जो पहला जो उन्होंने जो दो मिसरे पढ़े हैं ना, वो जो उसका सोड फलाप है, वो आपको याद रहा था. दैट्स वंडरफुल, दैट इज वंडरफुल. बड़ी बात है. आप भी वही मुराद साहब के फैन हैं? ये मतलब क्या, ये मैंने 40 साल पहले गाना सुना था, जो गोल नहीं कैसेट होती थी, गोल कैसेट. गोल कैसेटें? गोल कैसेटें कौन सी होती थी? वो गोल घूमती थी, तो ऐसे घूमती थी गोल, उसमें गाना मैंने सुना था भाई. ओ स्पूल, वो जो रिकॉर्ड होते थे. हाँ, ओके. वाओ. 40 साल पहले मैंने सुना, याद है. ये गाना आप कब सुना दो ना हमारे को. मैं कोशिश करता हूँ, बिल्कुल कोशिश करता हूँ. थैंक यू सो मच. इनसे बोलो ये गाना मुझे मसूद राना साहब का दे. मेरे दिल के कितनी बहारें कितने मौसम, तुझ बिन बीते कितने साल. हाँ, ऐसी था कुछ. Anyways, ladies and gentlemen, if you want to give me a call, then dial me up. 021387091188 is the number to call. You're on the air. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. जनाब क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. सोना पाकिस्तान है. वाह, वेरी नाइस. सर कौन बात कर रहे हैं? मैं सर एक हाफिज नज़ीर अर्ज करना चाहिए जनाब को. हाफिज साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? रब्बिल एहसान है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. सर क्या कहना चाहते हैं सर? सर मैं पहले भी आपको कॉल की थी, लेकिन मैं नबीना वाला हूँ
मेरे बच्चे माशाल्लाह 2 बेटे मैट्रिक पढ़ रहे हैं, पहुंच गए मैट्रिक की तरफ। बच्ची मेरी 9वीं क्लास की है, 9 में, छोटा बेटा 7th क्लास में है। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ सर। मैं पहले आया कराची, लेकिन आपका जो है ना मेरे को रेडियो नहीं मिला कि मैं ब्लाइंड हूँ। मेरा वालिद साहब भी इसी तरह नबीना है, मेरा भाई भी नबीना है। बहुत मुश्किल वक्त में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे एकदम से शौक सा लगा है। जस्ट मैं एक चीज देख रहा था, आई जस्ट जब आपने कहा आपके भाई भी नाबीना है, तो आपके घर में सिर्फ ये 2 लोग नाबीना हैं, और भी लोग नाबीना थे? नहीं 3 बहन है मेरी, वो ठीक है। वो ठीक है, वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, वो बिल्कुल ठीक है। सिर्फ आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे भी ठीक ठाक हैं। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई क्या करते हैं आप करते क्या हैं? कोई काम करते हैं आप? सर मैं कुरान पाक का हाफिज हूँ। माशाल्लाह। सखी हसन नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर पड़े, कराची के अंदर। मैं 2002 में गया था वहाँ। सैयद यूनुस अली साहबान, मेमन साहबान, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। 2010 की कर हमारे घर का अखराजात उन्होंने चलवाया था। ओके। मेरी शादी उन्होंने कराई थी। ओके। मेरे मकान घर का बना के उन्होंने दिया था। शानी इनसे बोले जरा, हम इनका नंबर निकालिए, इनका अभी इस वक्त जो कॉलर है नवीद को बुला मेरे पास। अच्छा ये बताइए मुझे, इस वक्त आपकी रिहाइश कहाँ है? मुजफ्फरगढ़ के साथ है, रोहिल्ला हमारी शहर है। मुल्तान से, मुल्तान के पास आगे? नो सर, अलीपुर हेड पंजन से आगे। ओके अच्छा, ओके ठीक है। लेकिन वो मुल्तान के पास ही है ना, मुल्तान के आसपास ही है? ये मुल्तान के आसपास है, ताकीला जिला मुजफ्फरगढ़। हाँ। तो आप कराची जो है वो यहाँ पर फिर उसके बाद कभी नहीं आए? नहीं, मैं उसके बाद आता था उनके पास 2010 की 10 के अंदर। वो अमेरिका में रहते थे। उनके आमिर साहब के बेटा आमिर साहब और सैयद रियाज शाह साहब बैंक मैनेजर साहब, उन्हें मिलता। लेकिन आमिर साहब मुझे उन्हें क्या साहब, वो वालिद साहब हमारे जो है ना वो करते थे ये, लेकिन हमारे पास गुंजाइश नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। आप जाएं, आप जो करना चाहें आप करें। सखी हसन कुबा मस्जिद के साथ उनका घर था। मुझे उनका एड्रेस वगैरह पीटीसीएल उनके दौर में था। उनका मोबाइल बाद में आया, तो बाद में फिर मोबाइल पे रब्ता होता रहा। लेकिन फिर मैं उनके घर में गया, जो रब्ता नहीं हुआ। उन्होंने बताया उनकी डेथ हो गई है अमेरिका में। उनकी जो फोटो हो गए, आप हमारे साथ रब्ता बात नहीं चलना आपने। फिर मैं आपको क्या बताऊँ साहब जी, मैं बता नहीं सकता। अगर मेरे साथ आप वापसी बैक कॉल करोगे तो मैं आपको आखिरी हालात बताऊंगा, आपको कंडीशन बताऊंगा, मैं बच्चों को किस तरह पढ़ा रहा हूँ, किस मुश्किल के साथ मैं इन क्लास की तरफ पहुंचे। लेकिन मैं अभी भी घर बच्चों को कहता हूँ यार मजदूरी कर लो तो बेहतर है। मेरी घर वाली जो है वो बोलती है 10वीं क्लास तो पढ़ा लो ना, मुश्किल वक्त में। नहीं और आगे पढ़ाएं उनको। आपकी घरवाली बिल्कुल ठीक बोलती हैं, आगे भी उनको पढ़ाएं। अच्छा हाफिज साहब, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मेरा आपसे वादा नहीं है, बिकॉज हमारे पास, मेरे साथ एक इशू ये है कि यहाँ पे जो मेरे पास ये सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पर भाई मेरे पास आपकी कॉल्स नहीं आ सकती हैं। ये एक सिस्टम के थ्रू मैं आपसे बात कर पाता हूँ। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से, बिकॉज हमारे पास बैक टू बैक कॉल्स लगी होती हैं और वो हजारों की तादाद में होती है, तो उसमें से आपका नंबर निकालना बहुत मुश्किल होगा। बट मैंने अभी इनको बोला है, अंडरस्टैंड करें, बट मैंने इनको अभी बोला है कि इंशाल्लाह ताला मैं आपका नंबर निकाल के फिर आपको कॉल करवाते हैं, ठीक है? मेरी बात और सुने ना। जी सर। ये आपका जो रेडियो है, मैं सदर की कर पहुंचे सर। इस सदर के किस साइड पे, मैं ये मुझे एड्रेस बताओ ना। सदर के साथ है, क्लिफ्टन के साथ है? नहीं। आपने हबीब बैंक प्लाजा, आपने सुना है नाम हबीब बैंक प्लाजा का? सर मैं नहीं सुना। ये सदर के अंदर है? नहीं, ये आपने सिटी स्टेशन देखा है? सिटी बिल्कुल, रेलवे वाला सिटी स्टेशन। रेलवे वाला सिटी स्टेशन, रेलवे वाले सिटी स्टेशन पे आके अगर आप किसी से पूछते हैं ना कि ये मेरा एफएम का रेडियो कहाँ, बस पूछ लीजिएगा रेडियो कहाँ है, तो वो आपको रेडियो बता देंगे। ये टेक्नो सिटी की बिल्डिंग है, टेक्नो सिटी की बिल्डिंग है। कौन सी बिल्डिंग है? इंग्लिश आता। टेक्नो सिटी। टेक्नो सिटी, हाँ टेक्नो सिटी की बिल्डिंग है। टेक्नो सिटी, हाँ ये कॉलोनी है? नहीं, ये बिल्डिंग का नाम है जिसमें हमारा, हाँ जिसमें हमारा ये ऑफिस है, हमारा ये स्टूडियो है, ये उसका नाम है। ठीक है। टेक्नो सिटी, सिटी शहर को बोलते हैं ना, सिटी, टेक्नो सिटी। हाँ सारे कैंट स्टेशन जो है, सिटी स्टेशन जिसको सिटी, कैंट स्टेशन नहीं, 2 कराची में 2 रेलवे, बहुत सारे रेलवे स्टेशन है, लेकिन 2 मेजर रेलवे स्टेशन है। एक है कराची कैंट और एक है कराची सिटी। आपने कराची सिटी आना है।
ठीक है, मैं इंशाल्लाह तो आपके पास जो है कराची सिटी के, मैं रेलवे पे सफर करता हूँ ना, हमारा स्पेशल % कार्ड बना हुआ है ना, वो उसके ऊपर डिस्काउंट करते हैं ना, इसलिए फिर मैं मैं हाफिज साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ट्रैवल ना करना पड़े, और नवीद जो है वो आपका नंबर निकाल लें, और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ट्रैवल ना करना पड़े. आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, घर में बहुत सलाम दीजिएगा सबको. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. थैंक यू हाफिज साहब फॉर कॉलिंग मी, बट दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आप खुदा का वास्ता यार, ये हमारे ये मेरी या किसी और की जॉब नहीं है, ये आपकी जॉब है. ये पाकिस्तान इस तरह से, अच्छा ये सिर्फ एक आदमी नहीं है, खुदा का वास्ता ये एक आदमी नहीं है, इट इज ऑल अक्रॉस द बोर्ड. ये कराची से पेशावर तक ऐसे हजारों सफेद पोस्ट लोग हैं जो कुछ नहीं कह सकते, उनको जरा सा भी जहां से कोई थोड़ी सी भी उम्मीद नजर आती है वो वहां चले जाते हैं. खुदा अच्छा, एनीवेज अंडरस्टैंड करें कि ये, अच्छा ये वाली कॉल्स जो है ना, ये आई थिंक हमको जो मुल्तान के लोग हैं या मुल्तान में जो लोग हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, बाकी लोग हैं, ये उनको पहुंचानी चाहिए. हमको ये काम करना चाहिए. इनफैक्ट हमको ये कॉल्स आप निकालिए और उनके नंबर ढूंढिए एंड आई एम गोना व्हाट्सएप देम. तो ये खास तौर पे मैं शाह महमूद कुरैशी साहब से कहता हूँ, या मुल्तान से आई थिंक गिलानी साहब का पूरा खानदान वहीं से खड़ा होता है, उसी वही विसिनिटी है. तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आपके ये आपके हल्के होते हैं जहां पर आपके MPs होते हैं, आपके MNAs होते हैं, आपके UCs के लोग होते हैं. मुझे समझ में नहीं आता, आप लोग इतना बड़ा बड़ा शोर करते हैं पार्लियामेंट में आके, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, पाकिस्तान पे इतना कर्जा चढ़ गया है. अगर कर्जा चढ़ गया है तो कर्जा लगा कहाँ है, किस जगह लगा है? इन लोगों पे लगा है. मतलब इट्स रिडिकुलस कि कोई आदमी उठा के फोन करे और मतलब हम, और सबसे बड़ी बात ये, मैं जितने, अगर कोई मुझे सुन रहा है इस वक्त, कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर जो मुझे सुन रहा है, प्लीज कम एंड स्पीक टू मी, टॉक टू मी. हमको वी डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनीथिंग, बट वी हैव टू कम अप विद फ्यू स्मार्ट प्रोग्राम, स्मार्ट इंसेंटिव्स और इनिशिएटिव्स. वी हैव टू कम अप विद दोस. और मेरे पास बंच ऑफ आइडियाज हैं, आप ले जाओ, आप अपनी कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट करो और पाकिस्तान के अंदर जॉब्स क्रिएट करो. खुदा का वास्ता इनको एम्पावर करो. जब तक इनको एम्पावर नहीं करोगे हमारे लिए मसला रहेगा. रुझान बनाना पड़ता है काम करने का रुझान जब तक आप नहीं बनाएंगे. और इस बकवास से हटो, ये जो बकवास हम करते हैं ना फेसबुक पे, इंस्टा पे, गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग. बहुत अच्छी बात है कि आप YouTube पे पैसे बना लेते हो, बट हर आदमी के पैसे नहीं बनते हैं. आप उठा के देखें, गिन के चंद लोग हैं पाकिस्तान में जो बहुत अच्छा इनकम अर्न करते हैं. कुछ और लोग भी इनकम अर्न करते हैं, लेकिन कितने होंगे? फ्रैक्शन. 5,000, 10,000, 50,000, लाख लोग होंगे. क्या पाकिस्तान 1 लाख लोगों की आबादी है? नहीं ना. लाख से ज्यादा मेरे ख्याल में नहीं हो सकते. 10 लाख होंगे. 10 लाख से ज्यादा नहीं हो सकते. 10 लाख से ज्यादा नहीं हो सकते. प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि अगर हमको करना है तो हमको ऑन ग्राउंड रियलिटीज को समझना पड़ेगा, और वो रियलिटीज हमारे लिए तल्ख से तख्तर होती जा रही हैं एवरी सिंगल पासिंग सेकंड. प्लीज मेक श्योर कि आप आएं और एम्पावर करने के अंदर हमारा सबका हाथ बटाएं. मैंने आपको बता दिया है कि हमारा जो बेटा वर्जन है वो दिसंबर के अंदर आ जाएगा, और इसके बाद अगले 6 महीने के अंदर अंदर हम उसको पूरी तरह से टेस्ट कर लेंगे, और इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम नेक्स्ट जून के अंदर वी शुड बी एबल टू स्टार्ट दिस, शुड किक इन. और ये आपको हर साल 2.5 से 3 लाख जॉब्स पाकिस्तान में फराहम करेगा, सिर्फ ये एक सिंगल अलोन स्टैंड अलोन प्रोग्राम. और इसी तरह के मैंने 15-20 इनिशिएटिव का सोचा हुआ है. उसके अंदर अगर आप ले सकते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आप ले लीजिए, आप अपने तौर पर इसको डेवलप करवाइए एंड जस्ट यूज इट. मैं आधी से ज्यादा अपनी उम्र गुजार चुका हूँ. दिस इज माई टाइम टू गिव बैक. आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू शेयर माई वेल्थ, माई रेवेन्यू, एनीथिंग दैट आई हैव, आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू शेयर दैट. तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे क्या समझ रहे हैं, को मुझे क्या लिख रहा है. फारिग लोग हैं, फारिग बातें करते हैं, तो करने दो उनको. मुझे तो आपको जवाब देना ही नहीं है. मुझे जवाब खुदा को देना है. खुदा के अलावा मेरा किसी के सामने सवाल जवाब होना नहीं है. तो आप मेरे कुछ भी नहीं लगते. अगर आप मुझे 10,000 किस्म की गालियां लिख दो तो लिख दो यार, बहुत मोर पावर टू यू, आई डोंट केयर. लेकिन इससे पहले कि आप मुझे कंडेम करें, जरा अपने आप को देख लें और सोच लें कि मैं तो फिर भी बात कर रहा हूं. मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं उठा के ये बातें करूं कि जी हमको चेंज होना चाहिए, हम में तब्दीली आनी चाहिए. मुझे कोई शौक नहीं है. मैं कोई, आई एम नॉट हर्टिंग फॉर कैश, यू नो. मेरी जिंदगी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर कल डॉलर 300 रुपए का भी हो जाता है. बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. पाकिस्तान का एक आम आदमी सिसकेगा, और जब तक हमने इस पॉलिटिकल सिस्टम के साथ यही किया जो हम कर रहे हैं और इन पे आस लगा के बैठे रहेंगे, तब तक हम चीजें तब्दील नहीं कर सकते. अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई पार्टी आके आपकी चीजों को तब्दील करेगी, इनको समझ ही किसी बात की नहीं है. दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. आपको लगता है कि ये कैपेबल लोग हैं? किसका कितने दौर हुकूमत रहे, ये बहुत कैपेबल हैं, लेकिन चालाकियों में कैपेबल हैं, ये बहुत कैपेबल हैं, लूटने में कैपेबल हैं, ये बहुत कैपेबल हैं, बकवास करने में कैपेबल हैं, ये सब इस चीज का कैपेबल हैं. ये पाकिस्तान को तब्दील करने में कोई कैपेबिलिटी नहीं रखते. ये दुनिया भर के रॉन्ग आदमी चुनते हैं
उनको उठा के अपने सियासत के अंदर बिठाते हैं और उसके बाद किसी को वजीर लगा देते हैं, किसी को मुशीर जहां पर मुशीर और वजीर को कख पता ना हो वहां पर हाल क्या होना, यही होना। जी वंस अगेन वेलकम बैक। कभी कभी मेरा दिल चाहता है ना मैं इनको मेरे एफएम वालों को बोलूंगा बुलाए, ये डायरेक्टली कांटेक्ट करें ना इनसे, यहाँ पर पीछे एक स्काइप की एक स्क्रीन लगा दो और इसमें ना हम लेते हैं जितने पॉलिटिशियंस हैं उनको लेते हैं और इसके बाद यहाँ से लाइव खोल देते हैं कॉल्स एंड देन लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के बड़े वो होते हैं ना कि सबको बोल देना चाहिए, अगर आवाम बोलने निकलेगी तो इनके पास तो जवाब भी नहीं होगा। I'm telling you honestly, they won't have any answers. अच्छा खैर anyway, let's take a phone call. Let's see who this is online. 0213-870-9188 यहाँ कॉल करने का नंबर। नहीं, चाय कहाँ गई? तो सॉरी 0213 नहीं है, ओके है कुछ ना कुछ है। 0213-870-9188 is the number to call. अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air. अस्सलामुअलैकुम खैर भाई, क्या हाल है? ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं? आपसे बात कर रहे हैं? मैं आसिफ बात कर रहा हूँ, मैंने मैसेज भी सेंड किए हैं। ओए होए आसिफ, नहीं मिले तुम्हारे मैसेजेस। ये फोन दीजिएगा मुझे दूसरा वाला आईफोन। तो थैंक यू। हाँ क्या हुआ क्या? बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सुनाइए, आपके क्या हाल चाल है? सब ऑल गुड? अल्हम्दुलिल्लाह, लाख शुक्र को। क्या चल रहा है आजकल? मैं किसी होटल पे जा रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? किसी होटल पे काम करने जा रहा हूँ। पीसी होटल पे? तुम लाहौर नाश्ते वाले? वाह वाह, तुम लाहौर पीसी में हो तो फिर तो तुमसे मुलाकात हो जाएगी। अक्सर मैं जब आता हूँ तो वहीं ठहरता हूँ। वेलकम आए भाई, आपको उधर थोड़ी बिठा के खिलाएंगे। फिर कहाँ बिठा के खिलाएंगे? किसी अच्छे होटल में जाएंगे, रोल पंप चले जाएंगे या पीसी चले जाएंगे। नहीं तो आप तो खुद पीसी में काम कर रहे हैं ना, ये क्या ना आपने? वो लड़का आ जाएगा कल उसका गया वो घर। अच्छा ओके, तो गया। ओ अच्छा, तो अभी टेम्परेरी जॉब थी जी। अच्छा। तो आज उसका फोन आया ना लड़के का। ओके तो कह रहे परसों में आ जाऊंगा। अच्छा, तो करते क्या है आप खुद खाना बनाते हैं? क्या करते हैं? मैं बिरयानी बनाता था मैं पहले। अब तो उनके साथ प्लेटें होता हूँ। बिरयानी बनाते थे? पहले रेडी पे बिरयानी भी देता था, फिर वो लस्सी का सीजन आया वो लगाया। अच्छा ये सीजन होते हैं तो बिरयानी तो लगता है कि सारे सीजन होती है। नहीं, बिरयानी बहुत महंगी हो गई है। कैसे? 280 रुपए किलो चावल पहुंच गया भाई। ओके, कौन खाएगा बेचारा? मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैं खुद, हम 3-4 लड़के इकट्ठे होकर रात का खाना खाने जाते हैं ना, एक प्लेट लेते हैं सालन की और बाकी लेते हैं स्पून से खाई, वो बिल कम आता है। नहीं दोबारा बोले। एक प्लेट लेते हैं सालन की और क्या? 4 आदमी इकट्ठे होकर मिल जाते हैं ना एक प्लेट सालन में। हाँ, वो तकरीबन 80 रुपए की प्लेट देता है वो। उसके साथ 2 रोटी खाई, 3 आदमी 2 रोटी। तो एक प्लेट सालन से गुजारा हो जाता? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का, इतना शुक्र अदा करें इतना कम है। हेलो, वो तो सही है यार, लेकिन वो जाहिर है अल्लाह पाक का तो हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन कभी लगता है कि तुमको यार ये सही नहीं है, कुछ बेहतर होनी चाहिए चीजें? नहीं, वो नहीं है। इतनी इन्वेस्टमेंट, मैं मंडी जाके फल वगैरह लगा रही हूँ। इन्वेस्टमेंट जमा हुए हैं, कुछ लगे 5-6 माह, हो जाएगी, अल्लाह खैर करेगा। और ये कितनी इन्वेस्टमेंट होती है? मुझे सिर्फ पूछना है, अगर आप बिरयानी लगाना चाहें तो बिरयानी की प्लेट अगर आप बना के बेचना चाहें तो कितने पैसे लगते हैं उसके अंदर? वो बिरयानी की प्लेट रेडी रहता है मजदूर आदमी, अमीर आदमी तो 50 रुपए की मांगते हैं, ये नुकसान 50-60 में। नहीं, पहले चावल करते थे। नहीं, मेरा सवाल, बिरयानी की जो प्लेट है वो 50 रुपए में आप देते हैं या दे सकते हैं? मैं 30 वाले को भी कभी नहीं वापस दे जाता। 20 रुपए की बिरयानी? 20 रुपए भी तो लेके आते हैं ना, उसको भी वापस नहीं। मगर अब समझ में कि वो मसाला 8,000 का जो क्या था एक माह का, वो 18,000 का हो गया। क्या हो गया? जो 8,000 का मसाला लेके आता था ना, वो 18,000 का हो गया 1 किलो। नहीं, मैं नहीं समझा, क्या लेके आते थे आप? मसाला बिरयानी में डालने। अच्छा, बिरयानी डालने का मसाला जो आप लेके आते थे
वो पहले 8,000 का आता था, अब 18,000 रुपए का हो गया. 18,000 रुपए किलो. ओके. एक देग बनाने में चिकन बिरयानी की देग बनाने में कितने पैसे लग जाते हैं? देखो अभी जो रेट चढ़े हैं ना, पहले 5 किलो पे खर्चा आता था तकरीबन कोई 1200 रुपए. 5 किलो पे 1200 रुपए? पहले ये चिकन के साथ गोश्त सब चीज डाल दूं के, दही वगैरह डाल के, गोश्त डाल के, गैस डाल के सब कुछ, तो वो 1200-1300 खर्चा आता था. तकरीबन 2100-2000 सेल हो जाती थी 5 किलो की. अब 10 किलो तक जाता था. 5 किलो का पहले पका के लेता है, 5 किलो के बाद भी पक गया. ठीक है. अब नहीं समझ आ रहा वो काम. नहीं, वो काम तो समझ में नहीं आ रहा. अब कितना लगता है? पहले 1200 लगता था, अब कितना लगता है? अब वो 3 किलो में कुछ बचता भी नहीं है. नहीं, वो सब. अच्छा, आसिफ समझो सवाल को. मैं ये नहीं कह रहा. मुझे पहले बताओ, तुमने कहा कि 5 किलो की जो बिरयानी थी वो पहले 1200 रुपए की तुम बनाते थे, राइट? और तुम कहते थे तुम उसको, अच्छा, तुम उसको बेचते थे 2100-2200 रुपए में, राइट? 1000 रुपए तुम्हें बच जाता था, यही बोल रहे हो? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, नहीं, आगे सुनो ना. आज तुम अगर बनाते हो तो कितने में बनती है वो? मुझे नहीं लगता कि एक होटल है. हेलो, तो पिछले वाला क्या करेगा? अच्छा, तुम्हारी आवाज बीच में से कट रही है तुम्हारी आवाज ना. अच्छा, आई डोंट नो कि क्या हुआ है, वो ड्रॉप हो गई है कॉल. मैं चला रहा हूँ वो. अभी मैं एक कैलकुलेशन कर रहा था बिरयानी की, और उसके अंदर शानी भाई जो हमारे वो एक्सपर्ट हैं खाना बनाने में. मुझे तो जाहिर है पता नहीं है, इल्म नहीं है मुझे. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में लिटरली ये मुझ तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती. मैंने अभी कैलकुलेशन की, अभी इनसे बैठ के मैं सीख रहा था ब्रेक के दौरान. तो ये मुझे बता रहे थे एग्जैक्टली कि 5 किलो की जो बिरयानी है वो इस वक्त आपको पड़ जाएगी, मैं कराची के आपको रेट्स बता रहा हूँ, इस वक्त वो आपको पड़ जाएगी 2600 रुपए की, राइट? अबाउट 2600-2800, डिपेंड करता है कि आप क्या कौन सा चिकन लेते हैं. लगा दीजिए, चला दीजिए. तो इतने में पड़ जाएगी वो ना. और जाहिर है उस पे अगर आप यहाँ पर जो बिरयानी की प्लेट्स हैं वो 170 रुपए की बिरयानी की सिंगल प्लेट है और 250 रुपए की डबल प्लेट है. तो मैं डबल को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा, मैं 170 ले रहा हूँ और 40 प्लेट्स निकल आती हैं 5 किलो में से. अगर आप उसको यूज करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको देता है 6,800 रुपए. अगर ये 6,800 रुपए दे रहा है, इसमें से आप 2,600 रुपए लागत निकाल लें, अपना रेंट निकाल लें, वहाँ का जो डिस्टर्बेंस होती है आप समझ गए होंगे. कुछ लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो अपना हक जताते हैं कि आपके माल पे उनका भी हक है. हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, तो आपने उनको भी दे दिया, समझ तो गए होंगे आप, उनको भी दे दिया, उसके भी मैंने 1,400 रुपए माइनस कर लिए, तो भी आपके पास 2,800 रुपए बचते हैं. इट्स नॉट मच, ये बिल्कुल ज्यादा नहीं है, लेकिन कम से कम इतना जरूर है कि आपको कुछ ना कुछ पैसा जो है वो बच रहा है. और अगर आपकी बिरयानी हिट हो जाती है तो देखिए ये मेरे ख्याल में, आई एम नॉट सेइंग कि आपको बिरयानी लगानी, कोई किसी काम, दुनिया के किसी काम में भी शर्म नहीं है, किसी भी काम में शर्म नहीं है. यू शुड फील प्राउड कि आप ये काम कर रहे हैं, किसी काम में शर्म नहीं है. लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ इंडिपेंडेंट होना कैसा होता है. फौरन आप यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग. अच्छा, आज मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ. कभी भी ये मत सोचें कि आपके पास क्या नहीं है. अपने आपके जो एसेट्स है ना, वो आपका घर तो हो सकता है, आपकी गाड़ी तो हो सकती है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा आपका एसेट आपकी हिम्मत होती है, आपके दोस्त होते हैं, ये आपका एसेट है. इस पे आप काउंट करें. एक पेपर लें, आज मेरे कहने से एक पेपर लें और उस पर लिखना शुरू करें कि व्हाट डू यू हैव. आपके पास एसेट्स क्या क्या है. आपके पास अगर एक फैमिली है तो ये आपका बहुत बड़ा, सबसे बड़ा एसेट है. अगर आपके पास दोस्त हैं तो ये आपका सबसे बड़ा एसेट है. अगर आपके पास हिम्मत है तो ये आपका सबसे बड़ा एसेट है. अगर आपके पास शऊर है तो ये आपका सबसे बड़ा एसेट है. अगर आपके पास अकल है, फहम है, दानिश है, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये बहुत बड़े बड़े एसेट्स हैं. सिट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एक छोटा सा प्लान बनाए. प्लान बनाने के बाद पहला प्लान क्या? पहला प्लान ये कि आपको 10,000 रुपए की जरूरत है. दूसरा प्लान क्या है? 10,000 रुपए आएंगे कहां से. लेकिन याद रखिए, इस प्लान से पहले आपको एक चीज यहां डिटरमिन करनी है, यहां डिजाइन करनी है कि आपको 10,000 रुपए चाहिए क्यों, और अगर ये आपके पास आ जाएंगे तो आप इसका करेंगे क्या. क्योंकि आप रिस्क को मिनिमाइज करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू. सो प्लीज अंडरस्टैंड, हिम्मत मत हारिए, हौसला मत हारिए, कैलकुलेट कीजिए. जिंदगी पे मैं ये नहीं कहता कि आप शुक्र अदा ना करें जो आपको मिल रहा है, बिल्कुल शुक्र अदा करें, लेकिन एट द सेम टाइम सेटल होकर मत बैठिए. खूब से खूबसूरत की तलाश जरूरी है. अब ये देखिए, जब तक आप, एक बात याद रखिएगा, जब तक इंसान कंफ्यूज है ना, वो प्रोग्रेस करता है. ये मैंने नहीं कहा है, ये मीर इब्राहिम साहब कहते हैं.
मुझे मीर साहब की ये बात हमेशा याद रहती है. एक बार जब मैंने नया नया जियो ज्वाइन किया था तो हम एक लंच पे थे, तो मीर साहब ने मुझे कहा कि साहिर आप मुझे बताइए आप सबसे अच्छा क्या करते हैं. तो मैंने मीर साहब को कहा, मैंने कहा मीर साहब मैं कुछ भी अच्छा नहीं करता, मैं जो कुछ भी करता हूँ अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ. मीर साहब ने कहा ये बात मैं आगे आपकी तरफ से पहुंचा दूं लोगों को. मैंने कहा बिल्कुल पहुंचा दें. फिर मीर साहब ने मुझसे कहा कि आपको पता है मैं हमेशा किस कुलिये पे अमल करता हूँ. मैंने कहा किस कुलिये पे अमल करते हैं. कहने लगे मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ और कंफ्यूजन प्रोग्रेस है. तो दिस इज वेरी वेरी गुड. मैं आज उनके नाम से ही आपको आगे बढ़ा रहा हूँ. एक बात याद रखिएगा, डू योर बेस्ट. यू मे नॉट बी बेस्ट एट एनीथिंग और एवरीथिंग, बट डू योर बेस्ट एट एवरीथिंग. आप जरूरी नहीं है कि आप हर चीज अच्छी करें, लेकिन जो भी चीज करें पूरे दिल लगा के करें, एंड देन सी द रिजल्ट्स मिलते हैं आपको. तो मैंने आपको सिर्फ ये एक बताया, बैठे बैठे मैंने अभी हिसाब लगाया है कि जी ये ऐसा हो सकता है, इतने पैसे आपको मिल सकते हैं. अच्छा, उसके मैंने 10,000 रुपए क्यों कहे? उसके अंदर आपको शायद कोई ठेला रेंट करना पड़ेगा, कोई जगह रेंट करनी पड़ेगी, कोई वेसल्स खरीदने पड़ेंगे या रेंट करने पड़ेंगे, या आपको मसालों को बल्क लेना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा. उसके हिसाब से मैंने ये बोला है. देखिए कारोबार में बहुत बरकत होती है. कारोबार जो होता है वो नौकरी से बदरजहा बेहतर होता है. आप इंडिपेंडेंट रहें. अच्छा, कारोबार का एक फायदा और भी है, ये जो हम एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं ना. अब आप सोचिएगा कि ये चाय का कप जो मेरे हाथ में है, इस चाय के कप से कितने लोगों की रोजी वाबस्ता है. इसको इस तरह से गौर कीजिए. एक शख्स वो है जिसने चाय बनाया है, ये कप बनाया है. फिर एक शख्स वो है जिसने इसमें इस चाय में जो दूध डाला है वो भी कहीं ना कहीं से आया है. उसमें कितने लोगों ने बेसिकली अपना किरदार अदा किया होगा. फिर चाय की पत्ती जाहिर है वो भी है. फिर चीनी इसके अंदर डली है उसमें. फिर उसके बाद जो चाय बनी है, पैकेजिंग हुई है, उसके अंदर कितने लोगों की मार्केटिंग इन्वॉल्व है. फिर उस मार्केटिंग के जरिए वो चाय वहां से निकल के दुकानों पे पहुंची है, दुकानों से खरीदी गई है. फिर जिन लोगों ने खरीदी है उन्होंने किस तरह से खरीदी हो. ये एक पूरी चेन है, एक साइकिल है. एक दूसरे को आप सपोर्ट करते हैं, इसी तरह से सपोर्ट करते हैं. प्लीज हिम्मत मत हारिए, प्लीज हिम्मत मत हारिए. डोंट सेटल फॉर लेस. नो, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी ओवर कॉन्फिडेंट. आई एम नॉट आस्किंग यू टू ओवर एस्टिमेट योरसेल्फ, बट प्लीज डोंट सेल योरसेल्फ शॉर्ट. Do not sell yourself short. Don't underestimate yourself. Please, you're better than that. Understand करें इस बात को, समझें इस बात को. या आप इसलिए आप नारे लगाने के लिए नहीं रह गए कि आप नारे लगाते रहे, इंतजार करते रहे कि ये जलसा आज यहाँ पर होगा, कभी कहीं होगा, कभी कहीं होगा. आप नारे लगाने के लिए नहीं हो. आप बोले भाई मुझे, मेरे पास नारे वारे का टाइम नहीं है. ये जलसों का सीजन जो, और ये मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, मुझे माफ कर दीजिएगा, वो मेरे पीछे शुरू हो जानी, आप तो जलसों के दुश्मन है. मैं किसी चीज का दुश्मन नहीं हूं, मैं गुर्बत का दुश्मन हूं. गरीब का नहीं, गुर्बत का दुश्मन हूं. और जहनी गुर्बत का सबसे ज्यादा दुश्मन हूं. जब आपका जहन गरीब हो जाता है ना तो आप सोचना समझना सब कुछ खत्म कर देते हैं. तबीयत गरीब होना एक दूसरी बात है, वो बड़े मजे की चीज होती है. आप अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, वो बड़ी जबरदस्त बात है. लेकिन जहनी गुर्बत बर्दाश्त ना काबिल बर्दाश्त है. जब आप ये डिसाइड कर लें कि आप हिम्मत हार चुके हैं. नो, लेट्स नॉट सेटल फॉर लेस. मैंने आपको अभी बताया है, अभी आसिफ आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि अब बांधा नहीं है अभी, मतलब नहीं बोलते बांधा, मतलब समझे बात को. अभी आपने बोला कि जी ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, अभी भी हो सकता है, इस वक्त भी हो सकता है. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जो 20 रुपए की बिरयानी दे रहा है, जो प्लेट दे रहा है 20, आप उसको लौटा दो, ऐसा नहीं है. लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को थोड़ा सा सेटल करें. कहाँ? उस जगह जाइए जहां थोड़े से आपको बेहतर पैसे मिल सकें. फिर उसके बाद एक जगह उनके लिए भी खोलिए जो जाहिर है जो इतने नॉन अफोर्डिंग है, जहां 50 रुपए की या 30 रुपए की बिरयानी की प्लेट मिलती है. फिर वहां आपको बहुत सारी चीजें डिफरेंट करनी पड़ेंगी. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. वहां पर आप थोड़े से जो बिरयानी कॉस्ट कर रही है 2600 रुपए की या 4000 रुपए की, वो बिरयानी की कॉस्ट कट डाउन होकर 2000 रुपए की, 2500 रुपए की भी आ जाएगी. लेकिन जाहिर है जहां आपने उनसे पहले 30 रुपए चार्ज किए थे, आज आप उनसे 50, 60, 70 रुपए भी चार्ज कर सकते हैं. कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज बेहतर हो सकती है. प्लीज ट्रस्ट मी. और कभी जरूरी नहीं है, मैं एक चीज बड़े शौक से खाता हूँ, टमाटर की चटनी और चावल और मटर, ये बहुत शौक से खाता हूँ. ये बहुत मतलब, अब मुझे पता नहीं टमाटर कितने हैं. टमाटर महंगे कितने? 150 रुपए किलो. फिर भी सस्ते हैं. 150 रुपए चिकन से तो सस्ते हैं ना. हाँ, कभी कभी 400 रुपए किलो हो जाते हैं भाई. है 400 रुपए भी किलो हो जाएंगे टमाटर. वाई 400 रुपए खरीदे भाई. नहीं, बट वो जब गायब कर देते मार्केट से. हाँ, मार्केट से बेकारी हो गई. अल्लाह ताला हमारे ईमानों को महफूज रखे. लेकिन सिंपल चीजों की तरफ चले जाएं. अच्छा, ये तो सिर्फ मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आपने यही करना है. नहीं, थोड़ा सा पढ़ें लिखें, थोड़ा सा आगे आए, अपने हुनर को एक्सपैंड करें. अगर आप बहुत अच्छा बनाते हैं, आसिफ तुम बिरयानी बनाते हो, मुझे बड़ी खुशी हुई है. तुम फूड पांडा का एक होम शेफ है, उसका एक प्रोग्राम है, तुम उसको क्यों नहीं ज्वाइन करते? वहां तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी. थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा आगे आओ, थोड़ा सा तुमको टेक्निक आनी चाहिए मार्केटिंग की, डिजिटल पे. हो सकता है तुम्हें ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाए.
हो सकता है शुरू में तुम एक दिन में 2 किलो बिरयानी बेचो, हो सकता है आगे चल के तुम 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो बिरयानी बेचने लगो. यू नेवर नो. तुम एक लिख के तो लगाओ, पटाखा बिरयानी, धमाका बिरयानी, कोई इस टाइप की जॉर्ज वॉशिंगटन बिरयानी, आई डोंट नो, यू नो, कोई भी, मेरे पास तुम हो बिरयानी, कुछ बनाओ इस तरह का कोई. मैं बता रहा हूँ, तुम अगर हुमायूं से बात करोगे, इफ आई स्पीक टू हुमायूं कभी माइंड नहीं करेगा किसी भी ऐसी चीज को. मैं उसको इतना तो मेरे पास, मैं जानता हूँ हुमायूं को. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप लोगों को नहीं पता, मुझे मालूम है, और वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो वो किसी को नहीं बताते. हम सभी कर रहे होते हैं अपनी अपनी कैपेसिटीज के अंदर. तो मैं कहने की बात क्या है कि किसी से भी तुम हेल्प सीख करोगे ना, वो तुम्हारी हेल्प करेगा. अगर तुम किसी के पास चल जाओ और ये बोलो, किसी भले आदमी को बोलो कि भाई मुझे कुछ भी नहीं आता फूड पांडे के बारे में, लेकिन इसका होम शेफ प्रोग्राम है, मुझे बताओ मुझे इसमें एंटर कैसे होना है. मैं कल बता दूंगा. एक काम करो यार, किसी बंदे को बुलाओ यहाँ पर, हम प्रो बोनो करेंगे, फूड पांडे की तरफ से बुला लो किसी बंदे को, वो आपको बता देगा. ये तो घर की बात है ना, ये तो घर में, ये मैं आपके लिए कर देता हूँ. ठीक है, आप उन लोगों को बुलाएं, किसी को भी बुलाएं, बल्कि उनके कुछ लोग मैं जानता हूँ उनको, मैं उनको बुला दूंगा, वो अपने प्रोग्राम को पूरा एक्सप्लेन कर देंगे आपको. ट्रस्ट मी, इट वर्क्स. ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता, इट वर्क्स. ये आपकी सप्लीमेंटल इनकम होती है और कभी कभी ये आपकी मेजर इनकम हो जाती है. बट हिम्मत नहीं हारनी, नई नई चीजें करनी है. आपको मैं एक बात बताता हूँ. आपने कभी रोड पे हमारे पठान भाइयों को देखा है? वो, मैं तो जाहिर है उनमें से, वो बूट पॉलिश करते हैं. बट सवाल, आप उसकी हिम्मत देखिए, सर्दी हो गर्मी हो, रोडे कूटते हैं. आप चेक तो करें, वो किसी चीज का खौफ नहीं होता. रीजन क्या है? वो कमा रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं. दे आर वर्किंग. दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट. कोई किसी की इज्जत कम नहीं हो जाती. दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती जिसके लिए सारी कायनात बनी है, आप अपने दस्ते मुबारक से अपने हर काम को किया करते थे. आपके लिए किसी चीज की कमी थी? अफादे मक्का थे आप मतलब आप दोनों जहानों के उनके लिए रहमत हैं. और आपने अपना हर काम खुद अंजाम दिया. यह है डिग्निटी ऑफ लेबर, कि आपने काम नहीं किया. और आप मुझे बताइए क्या था वो, कि जब आप, सबसे बड़ा सबक क्या था? माल के ऐप बताएं और प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने कभी झूठ ही नहीं कहा, कभी उन्होंने झूठ नहीं कहा, वो कह ही नहीं सकते थे. हमें क्या बता रहे हैं कि तुमने भी नहीं कहना. आपने माल के ऐप बताए हैं और उस सफर के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है. तो ये हमें समझने की बात है. अगर हमने इसको नहीं समझा ना आज, तो फिर बड़े मसाइल हैं. हम कहते तो हैं कि हम इसको यू नो ऐसा बना देंगे, वैसा बना देंगे, लेकिन बेसिक जो पॉइंट्स हैं हम वही भूल जाते हैं. मेरे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके और मेरे आका, उन्होंने माफ फरमाया, लोगों को माफ फरमाया, जिन्होंने, आज हम एक दूसरे को, क्या मतलब, माफी तो बहुत दूर की बात है, हम ग्रजेस खामखा में पालते हैं. क्या दुनिया में किसी शख्स ने मेरे नबी से ज्यादा सोबतें बर्दाश्त की हैं? इसके बावजूद हाथ दुआ के लिए उठ रहे हैं. हम उनकी उम्मत हैं जो ये फरमाते हैं कि आज अगर कोई अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले तो उसको भी माफी है. वो जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर आप उसके घर में पनाह ले लेते हो तो आपको आज फिर माफी है. जो दरवाजा बंद कर ले उसकी भी माफी है, अमान है उसको. आज हम ढूंढ के बदले लेते हैं. हम क्या बातें कर रहे हैं? आपने अपने जो सहाबाएं हैं उनसे फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े. कब की बात है? और आज देख लीजिए चीन क्या है. चीन इल्म का गहवारा है. मतलब ये नहीं, मतलब जाहिर है, मतलब तो उनके बहुत सारे थे और ये भी एक मतलब था उनमें से. लेकिन आप सोचिए उस वक्त उन्होंने क्या फरमाया कि आप जाएं, सफर इख्तियार करें इल्म हासिल करने के लिए. हम तो घर में रहते हुए इल्म हासिल नहीं करते. हमारे इल्म ट्विटर फेसबुक तक महदूद है, एक दूसरे को गालियां देने तक महदूद है. अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके पास पैसा है आप उठा के उसको जलील करें, उसको गालियां दें. अगर आपके पास कोई चीज नहीं है और आप, तो जेलसी के मारे हुए लोग, कामयाबी से जलने वाले, अपनी कमियों को देखिए. एक बात याद रखिएगा,
सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की सबसे बुरी शक्ल होती है, सबसे बुरी शक्ल होती है. जब आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं ना, मैं कसम खा के कह सकता हूं देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद यू. देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद यू. हम्बल रहिए, फैक्चुअल रहिए, काम करें, दैट्स इट. लोगों को बकवास करने दें. जब आपके पास पैसे नहीं होंगे ना, ये लोग आपके लिए नहीं आएंगे. ये बकवास करते हैं. आपका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वास्ता क्या है? इनके मेरिट्स क्या है? इनके मेरिट्स यहां पर नहीं होते हैं. खुदा का वास्ता, इनके मेरिट्स यहां पे नहीं है. इनके मेरिट्स बाहर होते हैं. मेरा मुंह मत खुलवाइए. सबको पता है कि क्या होता है. 75 साल के अंदर क्या हमें आज तक अकल नहीं आई है? 75 साल तक एक टुकड़ा हम गंवा बैठे. और इसके बाद ये जो हमारे पास है, इसके साथ हम क्या कर रहे हैं? अगर आप ये समझते हैं ना कि सारा कसूर पॉलिटिशियंस का है, एस्टेब्लिशमेंट का है, और आपने कुछ नहीं किया, तो इतने काके हम नहीं हैं. ऐसे काके नहीं हैं. हमने बड़े सारे काम किए हैं. लाइन हम सीधी लगाते नहीं है, जानबूझ के. नहीं लगानी आती हमको लाइन. हम बाहर जाते हैं, लाइन नहीं लगाते. दुबई में जाके तुम लाइन को टेढ़ा करके देखो. लिखो किसी को गाली ट्विटर पे, लिखो किसी को गाली तुम फेसबुक पे, लिख के दिखाओ मुझे, अंदर हो जाओगे. सऊदी अरब में बुरा भला कहो. यहां तुम्हें मादर पितर आजादी मिली हुई है तो तुम कुछ भी बोल सकते हो. क्योंकि ये तो मतलब हमने इसको तो समझा हुआ है कि इस जमीन पे तो हम जो कुछ कर सकते हैं वो कर लें, बाकी तो छोड़ें. तो फिर कंप्लेन भी मत किया करो. ये कंप्लेन मत किया करो कि तुम्हारे यहां बिजली नहीं है. सही बात है, बिजली नहीं है. बिजली कैसे आएगी? तुमने क्या कोशिश की उसके लिए? किससे पूछा? जो सिली किस्म का आदमी आया जिसने तुम्हें जो टीका लगाया, जो मंजन दिया, तुमने तो वो मान लिया. वो बहुत अच्छा है, वो मेरे गांव से है, वो मेरे फला है, वो मेरा हम जबान है, वो मेरा. ओ भाई मेरे, निकलो इस चीज से. तुम मुसलमान हो, दैट्स इट. ये आपकी आइडेंटिटी है. इंसान हो, ये आपकी आइडेंटिटी है. आपकी आइडेंटिटी आपका शहर, आपकी गली, आपका मोहल्ला नहीं है, आपकी जबान नहीं है. ये कौन सी आइडेंटिटीज बनाई हुई है आप लोगों ने अपनी? कोई मेरी कास्ट का है, ये कास्ट खत्म हो गई थी. हम उलझे हुए लोग, फजूल बातें करने वाले लोग जाके पीट रहे होते हैं. मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ऐसा दे दो, मुझे वैसा दे दो. घर में आके उन्हें गालियां देते हैं. फिर उसके बाद वहां पर क्या यार, मेरे मुंह खुलवाते हो. तुम लोगों के साथ अच्छा मजाक होता है तो पता मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं अच्छी तरह से. आप लोगों को कोई इतने चूचे नहीं है. आप सारे इधर बैठ के आपको सबको पता मैं आपसे क्या कह रहा हूं. कौन सी ऐसी जमात है जो आपसे नहीं खेली है आज तक? पानी हमारे यहां नहीं आता, कोई मसला नहीं. बिजली हमारे यहां नहीं आती, कोई मसला नहीं. बेरोजगारी हमारे यहां है, कोई मसला नहीं. मैंने आपको कल एक इंडस्ट्री की बात की थी ना कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं. किसकी वजह से जा रहे हैं? गवर्नमेंट की वजह से जा रहे हैं? नहीं जी, ये जो यूथ है ये लेकर जा रही है. हमारी जो यंगर जनरेशन है उसे समझ आ गया है. कम से कम वो हमसे बेहतर है. एक्सप्लोर तो करिए दुनिया को, खड़े तो हो रही है, मुकाबले में तो जा रही है. God bless them, honestly. My heart goes out to them. हमने हर वो काम किया है जिसकी वजह से उनके हम फ्यूचर को अच्छा खासा ब्लीक कर सकें. बच्चों को जरूरत होती है इस बात की कि अपॉर्चुनिटीज उनके सामने हो. हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं तो 6ठी 7वीं से उसे पता चल जाता है कि उसे बाहर जाना है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज यहां नहीं है. हम पैदा ही नहीं करना चाहते. हमें यह मंजूर है कि हमारे बच्चे बाहर चले जाएं, उसके बाद उनकी याद में हम रोएं, ईद बकरा ईद पे वापस आए, फिर वो वहां शादियां कर ले और फिर वहां बस जाएं, उसके बाद हम उनको ब्लेम करें कि तुम कभी लौट के वतन नहीं आए. क्या हो गया है हमें? सोचे तो सही, 75 साल से यही जारी है. कभी इसको चेंज नहीं करेंगे आप लोग? कभी आपको नहीं लगता कि इसको तब्दील होना चाहिए? कभी आपको नहीं लगता कि आप लोगों को खड़े होना चाहिए? कभी आपको नहीं लगता कि इन जलसों में जब बकवास होती है टीवी को बंद कर दें, आप नहीं सुने नहीं जाए, ये खाली कुर्सियों को करेंगे जलसा? एहतजाज तो अपना रिकॉर्ड कराओ यार. ये तुम्हारी जिंदगी है जिसे खेलते हैं. जो आता है वो एक नई चीज दे के चला जाता है. यूं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. वह बारिश होती है तो पानी खड़ा हो जाता है. हमने ऐसे ऐसे ड्रेनेज सिस्टम बनाए हुए जो आगे से बंद हैं. अस्तगफिरुल्लाह. लोगों को निकाल देना चाहिए यहां से. एक रोड बनना शुरू होती है. आज तक हम लहरी एक्सप्रेस वे पूरा नहीं बना सके ना. क्यों भाई? क्या 50 साल मंसूबा है?
मतलब मैं जब मर जाऊंगा, ज़ारा जब बड़ी हो जाएगी, तब कहीं जाके पुल कंप्लीट होगा. Why? क्यों? क्या वजह है? मतलब यार को खुदा का खौफ करो. इस मामले के अंदर मैं क्रेडिट देता हूं पंजाब गवर्नमेंट को. और जाहिर है मोस्टली तो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब एंड इवन परवेज इलाई, उनको मैं ये क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने मंसूबों को बहुत तेजी से कंप्लीट करवाया है. और मेरे ख्याल में ये केपीके के लोग जो हैं उन्होंने भी काम किया है. एक आध मंसूबे ऐसे हैं जो थोड़े से टेंटेड हैं, लेकिन बाकी जगह काम हुआ है. लेकिन ये मंसूबे बहुत कम हैं, आपको और ज्यादा. हमारे यहाँ बाय फार सबसे ज्यादा तरक्की पंजाब ने की है और वो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है. उन्होंने अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज किया है. लेकिन वहां भी आम जिंदगी जो है वो पनपती नहीं है. आम जिंदगी जो है वो अफरा तफरी का शिकार है. आम जिंदगी जो है उसके साथ अजीब सा एक मजाक होता है. लेकिन बाकी जगह तो हालात इससे भी बहुत बुरे हैं. अल्लाह ताला हम पे रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे. All right, जी. Let's take a phone call. Let's see who this is online. 0213-870-9188 यहाँ कॉल करने का नंबर. You're on the air. अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो. वालेकुम अस्सलाम. सर कैसे हैं? खैरियत से? सर अल्लाह का शुक्र. बदर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान. आप कैसे हैं? बदर भाई पता नहीं, थोड़ा सा गुस्से में हूँ. वो तो मैं सुन रहा हूँ. सॉरी यार भाई, इतना गुस्सा ना लिया करे ना दिया करे. नहीं यार, नहीं. अरे नहीं यार, क्यों दफा करें यार, क्यों दफा करें. बदर हो गया ना यार, बहुत हो गया. साहिर भाई बात इतनी सी है ना ये लोग समझने वाले ना कुछ करने वाले. चल यार नहीं समझेंगे. आप अपना ब्लड प्रेशर क्यों ऊपर से नीचे कर रहे हैं? नहीं कोई नहीं, कोई मसला नहीं. देखो मेरा काम कहना है. कम से कम जब मैं मरूंगा तो मुझे ये तो है ना, ये मेरी जॉब है ना कम से कम. और मैंने अपने तौर पे ये कोशिश की है कि हर तरह से मैं पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकूं. मैंने ये कोशिश की है. अब अल्लाह जानता है मेरी कोशिश कहीं ना कहीं जरूर मैं गलत भी हुआ हूँगा. और मैं ये नहीं कहता कि मैं हमेशा सही हूँ, लेकिन यार अपनी सी कोशिश तो करनी चाहिए. मैं कर रहा हूँ. एट द एंड ऑफ द डे एक दिन यही होगा कि जाहिर है मैं भी नहीं रहूंगा, और जब मैं भी नहीं रहूंगा तो कोई और मेरी जगह संभाल लेगा. बट समवन शुड डू इट. हमको, मुझे जो तकलीफ होती है 75 सालों से हमारा यही प्रॉब्लम है यार. हर साल मानसून के मौसम में बारिशें होती हैं, इंडिया अपना पानी खोलता है और हम उसी सैलाब से गुजरते हैं एवरी सिंगल ईयर. सही बोल रहे हैं. व्हाई? क्यों? मतलब बहुत तकलीफ दे है यार ये. अच्छा सर भाई, सवाल ये है कि ये बेसिकली ठीक है ना. अब ये सिस्टम तो मेरे ख्याल से तो जिंदगी भर शायद ये लोग ऐसे ही चला के रखेंगे. ठीक है, आपने अभी बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो लोग इन सारी सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, वो जो आम आवाम है, जो हम हैं, तो वो क्यों नहीं इसके ऊपर कुछ ना कुछ गौर व फिक्र करती है. एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं जाता सारा कुछ हमारा ही है. बिल्कुल सही. क्योंकि पॉलिटिशियन ने दे वांट टू प्ले देयर गेम. ठीक है, वो जो उन्होंने करना है वो करना है, और जिसने भी जो भी चीजें करनी है वो करनी है. मगर हम क्यों नहीं सोचते? हम इतने क्या बेहिस हो चुके हैं, या हमें वो सोचने समझने की हिस्स खत्म हो चुकी है कि हम किसी भी चीज को एक दिन, आज का दिन जो एक अल्लाह ना करे कोई चीज ऐसा हादसा हो जाए, हम 2 दिन तक उसको पकड़ के बैठेंगे, तीसरे दिन उसको भूल जाएंगे. सर वो चौथे दिन कुछ नया हो जाएगा. बदर एक सेकंड, वो हम इसलिए पकड़ते हैं बिकॉज ब्रेकिंग न्यूज होती है. सर अगर वो ब्रेकिंग न्यूज ना हो ना, हम कुछ भी ना पकड़े सर, वो हमारी टीआरपी है. ये भी है. मतलब हम तो कमाल है ना, मतलब जबरदस्त किस्म के हमारे वो होते हैं. हम किसी जगह जाते हैं और अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज आ जाए तो सबके हाथ में मोबाइल फोन्स होते हैं, सब अपने मोबाइल फोन्स पे लग जाते हैं. अब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा. मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं. अभी एक डिनर पे था मैं, एक ऑफिशियल डिनर था, उस पे था मैं, और 4-5-7 लोग बैठे हुए थे एक ही टेबल पे, मैं भी वहीं था. तो मैंने लिटरली वो फोन जो है वो बंद करवा दिया. अच्छा. आई हेट इट. I mean, come on. If you're talking about something, I don't want to talk about the rubbish politics. मुझे तो बात ही नहीं करनी. मुझे पॉलिटिक्स पे बात ही नहीं करनी. धंधे की बात करो यार, पैसा बनेगा नहीं बनेगा, सिर्फ इसकी बात करो. हम एक प्रोजेक्ट, हम एक फलाई प्रोजेक्ट के लिए एक साथ बैठे थे सबके सब ना. और फलाई प्रोजेक्ट ये था कि सबको थोड़ा थोड़ा पैसा पिचन करना है और हमको एक जगह एक चीज शुरू करनी थी. तो उसके अंदर भी ना सबसे पहले बात वहीं से शुरू थी. अच्छा आजकल ये तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, या पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, शहबाज शरीफ साहब क्या कर. मुझे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहे. तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो. मतलब सिंपल, आई डोंट वांट टू नो कि व्हाट दे आर डूइंग. मुझे तो आई नीड टू फोकस ऑन व्हाट वी आर डूइंग. वो जो कुछ भी कर रहे हैं उनको करने दो. तो उस वक्त भी उनको बहुत नागवार लगा सबको. मैंने कहा यार ये अगले 1.5 घंटे
अगर आप लोग मेरे साथ रहना चाहते हैं तो आपने अपने फोन्स बंद करने, You have to switch your mobiles. उल्टा करके रख दें, किसी ने अगर उठाया अपनी अपनी बेगमों को फोन कर दें, बता दें कि आप यहाँ पर बैठे हुए मीटिंग के अंदर और सिर्फ उनका फोन उठाने की इजाजत है, उसके अलावा किसी का फोन नहीं उठेगा. जाहिर है वहाँ तो मसाइल हो सकते हैं, तो मैंने सिंपली कहा सिर्फ उनका फोन उठा लें, उनके अलावा किसी का फोन मत उठाइएगा. There's an emergency, we're all there. लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं. अच्छा साहिर भाई, एक सजेशन था, अगर बुरा ना माने. नहीं सर, बोलिए. What we are discussing ना यार, वीकेंड्स में ना कोई चिल माहौल वाला प्रोग्राम होना चाहिए यार. यार मैं तो कह रहा हूँ सर, इतनी पाबंदियां हैं सर. मैं तो कह रहा हूँ वीकेंड पे लाजमी नहीं यार, वीकेंड पे नहीं. मैं तो अच्छा कल होगा, कल चिल वाला होगा, तू सोच, तू फिक्र नहीं कर, कल चिल वाला होगा. लेकिन मैं तो बताऊँ, मेरा कभी कभी दिल चाहता है, मैं तो अगर करूँ ना, मैं इतना चिल प्रोग्राम करूँ तुम लोग हंस हंस के पागल हो जाओ. बट मसला ये है कि कोई ना मैं अच्छा खासे मूड से आता हूँ, कहीं ना कहीं कोई एक चीज ऐसी हो जाती है कि मैं ना कभी कभी ना मेरा दिल चाहता है कि मैं ना मतलब समझ तो गए होगे ना तुम. कभी मैंने बड़ी अच्छी किसी की बात सुनी थी. मैंने बोला था कि बाहर के मुल्कों में ना लोगों के पास अपनी उंगली अपने पास होती है, यहाँ वालों के पास ना अपनी उंगली अपने पास नहीं रहती. मैं सच बता नहीं रहती. मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स न्यूसेंस यार, इट्स न्यूसेंस. खैर बहरहाल तुम सही कह रहे हो, चिल होना चाहिए. मैं तो कहता हूँ चिल ही होना चाहिए, 10 बजे से 12 बजे तक चिल. हाँ पता क्यों साहिर भाई, जो वीकेंड्स होते हैं ना, 2 दिन जो होते हैं यार, वी रियली मिस यू, ठीक है ना. और वो जो होता है ना, उसके अंदर जो है ना, वो जो 2 दिन का जो गैप आता है, उसके अंदर बंदा जो है ना, वो अच्छी यादें लेके आगे कंटिन्यू करे यार, वी आर गोइंग थ्रू विद द वेरी गुड मूड. अब वो ये हर वक्त का डिप्रेशन जो है ना, ये सियासत तो मैंने कसम से, और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने न्यूज भी देखना छोड़ दी. अच्छा वाकई दिस हैज हैपेंड टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम. मैंने भी वाकई देखना छोड़ दिया, बिकॉज सब एक ही रोना है, सारा वक्त एक ही रोना है. मैं बताऊं, मैं अच्छा वैसे पहले तो मैं देखता भी बहुत बाहर का मीडिया हूँ, बिकॉज उसका रीजन ये है, हमारे यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो डिपेंडेंट वहीं का होता है. और ये हमारे पॉलिटिशियन तो इनको बताएंगे नहीं. सीधी बात तो ये है कि इनको पता, मतलब सबको पता होता है हम अमेरिका यात्रा क्यों करते हैं, हम लंदन यात्रा क्यों करते हैं, सबको मालूम होता है, लेकिन हमने बोलना कुछ नहीं. तो मतलब जाने दो. तो मैं वो न्यूज क्यों ना देखूं जहां पर जो कुछ होगा वो पता चल जाएगा, बजाय इसके कि यहाँ पर ट्विस्ट टर्न. मतलब एनीवे, बट आप सही कह रहे हो, यही करेंगे, हम यही करेंगे, कोशिश करते हैं. प्लीज डन. बदर प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बहुत ख्याल रखिएगा. तबियत आपकी माशाल्लाह से ठीक है. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मच बेटर. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. दैट वाज बदर एंड आई एग्री यार, आई एग्री, इट्स रिडिकुलस. हम लोग इतनी चीजें करते हैं. शानी भाई, बड़ी जरूरत है आपकी, कुछ ऐसी बात करें जो हम सबको हंसा दे. बोलिए सर. क्या बात करें सर, आप बताएं. नहीं सर, कुछ भी कर दें आप, तो कोई भी बात करें, कोई किस्सा सुना दे अपना, कोई किसी वो आपको याद है, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, ये कैसी बात हो गई. एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई. कभी मुलाकात हुई ऐसे किसी? अच्छा, कभी किसी को देख के अचानक से दिल धड़का आपका? उसे आपका तो सभी को देख के धड़कता है, पर ऐसे बोल रहा हूँ, कभी किसी को देख के एकदम से अचानक से दिल में ऐसे यार, मतलब जी होता है, कभी कभी होता है. इस उम्र में भी हो जाता है. हाँ होता है भाई, होता है. मर्द कभी बुरा नहीं होता और भाई जवान रहता है. नहीं मतलब नहीं, I don't want to know all this. नहीं भाई, वो बात नहीं कर रहा मैं कहने का कि दिल हमेशा जवान रहता है. दिल तो बच्चा है जी. हाँ, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो पागल है. ऐसी उलझी ना, वो ऐसी ना, तात से रेशमी डोर कटती नहीं. आगे दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी, हाँ दिल तो बच्चा है जी. ऐसी था ना. बड़ा प्यारा सॉन्ग है और अच्छा उसको जो ना पिक्चराइज किया है, बड़ा अच्छा पिक्चराइज, बहुत अच्छा किया. और गाया तो राहत भाई ने बहुत अच्छा, जबरदस्त. राहत भाई ने बहुत अच्छा गाया. अच्छा एनीवे, तो आपको कभी जब ऐसा होता है तो आप अपने दिल को कैसे समझाते हैं? दिल को ही समझाते हैं कि भाई, माइक में बोलिए. हाँ जी, दिल को इस तरह समझाते हैं कि अब क्या करना, हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं. क्या नहीं, अब क्या करना, बच्चे मारेंगे, बड़े हो चुके हैं सारे. हाँ ये बात भी सही है. अगर हमने बच्चों के सामने जाके जरा सा भी ये कहा ना, तो इसके बाद फिर बच्चे जो सुनाएंगे ना, फिर वो सुनाएंगे. राइट, बिल्कुल ऐसे. बिल्कुल. आखिरी मर्तबा मोहब्बत कब की थी? आखिरी मर्तबा जब किसी को देख के लगाओ तुम पास आए यूं मुस्कुराए. बस चंद दिनों की बात है. मैं बहुत मारूंगा तुम्हें. चंद दिनों की बात है.
सीरियसली चंद दिनों की? दिल ने कहा बस, लेकिन आपने कुछ फरमाया उनसे या अभी मौका नहीं मिला? नहीं, मौका नहीं मिला। नंबर तो ले लिया होगा आपने? नंबर तो वो ले लेते हैं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम पता है एक जगह थे, मैं आपको ये सच्चा वाकया बता रहा हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना मैं बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई होता हूँ और बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड होता हूँ, तो मेरे पास किसी भी किस्म का कोई वक्त, कोई टाइम नहीं होता और किसी के लिए भी नहीं होता। ये सब जानते हैं, पूरी टीम में मेरी 15, 20, 25 लोगों की। तो हम ये उन दिनों की बात है जब, अच्छा अभी भी हम लोग एक शो की तैयारी कर रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट शोज इन पाकिस्तान, वन ऑफ द बिगेस्ट। तो मुझे डर यही है कि फिर ये लोग साथ हैं, तो अल्लाह ताला तो अल्लाह मालिक है। तो ये शानी भाई जो है ना, वो फिर और दूसरे लोग, तो ये लोग एक जगह गए जहां बहुत सारा क्राउड था, कोई तकरीबन 3-3,500 लोग थे, बोलिएगा नहीं कहीं भी। बिल्कुल इज्जत सबकी रहनी चाहिए। तो आपको पता है ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी, यू रिमेम्बर दैट, राइट? अच्छा, हमारा पूरा ग्रुप जो मेरे जो प्रोड्यूसर हैं, एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, मतलब वी हैव गॉट लाइक टीम ऑफ 20 पीपल, 25 पीपल जो साथ होते हैं। अच्छा, भाई कब आते हैं? भाई आते हैं शो से 1 मिनट पहले, और भाई शो के 1 मिनट के बाद चले जाते हैं। मतलब ठक से आए, उधर से शुरू हुआ, मैंने पूरे 2 घंटे 2.5 घंटे का शो किया, इसके बाद देन आई एम गॉन एंड दैट्स इट। मुझे उसके बाद उस जगह से कोई वास्ता नहीं होता। मेरे प्रोटोकॉल के अंदर 4 लोग हैं, एक अब नवीद साहब हैं, लासी, राजा, नवीद और मैं, हम ये 4 लोग होते हैं। 5वां कख कोई आदमी नहीं होता, या फिर वो जो मुझे सिक्योरिटी मिलती है जब मैं शो के लिए एंटर हो रहा होता हूँ, उसके बाद ये जा वो जा, मैं इनके से कोई वास्ता नहीं रखता। तो अच्छा, हम एक जगह शो कर रहे थे, तो अचानक से ना पीछे से ना जब हम ब्रेक पे जाते थे तो भिनभिनाहट की आवाज ना, तो मैंने बोला ये क्या हो क्या रहा है? तो बहुत सारे और लोग मेरे पास आए कि भाई वो तो उनको कोई चेहरा नजर आया था जो बहुत हसीन था, बहुत खूबसूरत चेहरा था वो। तो सारे लोग कहने लगे, कोई कहे यार बस मतलब यही ऐसा है। जब मुझे जहन में ना मुझे पता नहीं, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ बिल्कुल ना, तो मुझे कुछ नजर नहीं आता, मुझे सिर्फ शो नजर आ रहा था और रेटिंग नजर आ रही थी कि किसी तरह से रेटिंग बेहतर है, बिकॉज तभी आप खाई पियेंगे, वरना तो आपको निकाल देंगे लोग। तो मैंने, और फिर दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात ये कि आप जब काम कर रहे होते हो तो यू हैव टू गिव अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू दैट प्रोफेशन। तो वो तमाम के तमाम लोग, चाहे वो 4,000 का मजमा, वो मेरी फैमिली होता है। तो वहां मैं तस्वुर ही नहीं कर सकता इन चीजों का ना। बहरहाल खैर, ये भी लोग तस्वुर नहीं कर सकते, लेकिन यूं ही फजूल की मस्ती में तो इन लोगों को कोई एक चेहरा नजर आ गया तो बहुत हसीन था। अच्छा, सब बातें करें, खैर वो बात आई गई होगी, मैंने शो कर लिया, निकल गए। अब इस बात को 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद हम रिलैक्स मोड में बैठे हुए थे ऐसे ही ना, और गप्पे मारे थे सारे के सारे लोग, 20-25 लोग। हमने खाना शाना मंगाया हुआ था, हम सेटी पे थे और मैं बैठा हुआ हूँ, और उसके बाद हंसी मजाक हो रहा है। तो अचानक से जिक्र निकल आया उस चेहरे का, तो सब लोगों ने शानी को देखना शुरू कर दिया। अच्छा, शानी को क्यों देख रहे? कह रहे भाई आजकल शानी भाई की उनसे दोस्ती बहुत है। अरे रियली उनसे दोस्ती है? ये कैसे मुमकिन हुआ? तो शानी भाई आज तक है उनसे दोस्ती? जी भाई, आज तक है। आज तक है? जी जी, वेरी नाइस। लेकिन आपको भाई समझती हैं, भाई कहती हैं? दोस्ती है मुझे, भाई कहती है ना? भाई नहीं कहती, वैसे दोस्ती है। नहीं, आप बेकार की बकवास नहीं करें, हमने मैसेजेस देखे, आपको भाई कहती हैं। सच्ची ऐसी बात नहीं। अच्छा, ऐसी बात नहीं, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं। आई नो, वी नो दैट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, तो अब ये जो आखिरी वाली मोहब्बत है जो आपको चंद दिन पहले हुई है, ये कहाँ वाकया हुआ? अचानक फोन आया भाई मेरे पास। किसका फोन? ये कौन लोग हैं जो तुम्हें फोन करते? मैं सच्ची बात बताऊं, बोले आपका फोन नंबर एक मेट्रो पे लिखा हुआ है, मेट्रो बस में लिखा हुआ नंबर आपका नंबर, मेरा नंबर। मैंने बोला और पता कहाँ? ये आपने आइडिया दे दिया, हर आदमी अपना नंबर जाके मेट्रो बस में लिख के आ जाएगा, कोई तो कॉल करेगा। सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा भाई। और लाहौर से फोन आया। माशाल्लाह। क्या आपका नाम? आपका तो लाहौर में कौन लिख गया मेट्रो के अंदर तुम्हारा नंबर? मेरा नंबर पता करो, ये आदमी कौन है? मैं कराची में हूँ, मेरा नंबर वहाँ कितने लिख दिया? ये सही नहीं है। आदमी जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तुम पता लगाओ ये कोई दुश्मन है तुम्हारा जो तुम्हारा नंबर लिख रहा है। तो पहले उन्होंने कहा कि मुझे जॉब चाहिए इस तरह से, कि आप जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने भाई मैं जोर से बोलिए। अब मैंने बताया कि आप नंबर कहाँ से लिया? आप तो खुद बोले मैं तो खुद बेरोजगार हूँ, मैं तुम्हें क्या जॉब दूंगा? हाँ, तो इस टाइम मैंने यही कहा कि भाई मैं खुद बेरोजगार हूँ, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। अच्छा। लेकिन मैंने कहा आपका नंबर कहाँ से लिया आपने? ये बताया कि मेट्रो पे लिखा है। कहाँ से मेट्रो पे किसने लिया? बहरहाल मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, और मैं कराची में हूँ, आप लाहौर में। अब आप कराची में हो
होते यानी होती तो मैं काबिल कुछ कर सकता। ये सच्चा वाकया? सच्चा वाकया सर। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर कहना क्या, अच्छा मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा, अगर मेरे लिए जॉब हो सके तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं नंबर सेव कर लूंगा। तो इसमें मोहब्बत कहाँ से आ गई? मोहब्बत नहीं भाई, मोहब्बत नहीं बदल। मैं तो आखिरी मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, ये तो किसी की मदद है ना। हाँ मोहब्बत यार एक तरह से एक। अरे भाई एक मिनट में एक बात सुनो, अगर कोई तुमसे बात कर रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है। नहीं मैं उस मोहब्बत की बात नहीं कर रहा भाई, मैं आपकी वाली मोहब्बतों की बात कर रहा हूँ जो आपको अक्सर हो जाती है, उन मोहब्बतों की बात कर रहा हूँ। वो आखिरी बार कब हुई है? इसका तो मुझे खैर याद नहीं है अभी तो। अच्छा अभी वो जरा मेंटली तौर पे जरा डिस्टर्ब है थोड़े से। आहिस्ता आहिस्ता याद आ जाएगा। लेकिन अब तो इरादा तो ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं इरादा तो कुछ नहीं है। इरादा था तर्के मोहब्बत का, लेकिन फरेबे तबस्सुम में फिर आ गए हम। अर्ज किया आपके लिए, इरादा था तर्के मोहब्बत का, लेकिन फरेबे तबस्सुम में फिर आ गए हम। अभी खा के ठोकर संभलने ना पाए कि फिर खाई ठोकर संभलते संभलते। वाह 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 वाह, क्या बात। मरीज़े मोहब्बत उन्हीं का फसाना, सुनाता रहा दम निकलते निकलते, मगर जिक्र शाम अलम जब के आया, चरागे सहर बुझ गया जलते जलते। वाह वाह वाह। भला कोई वादा खिलाफी की हद है? आया जाने दो। वाह वाह। कयामत का दिन आ गया रफ्ता रफ्ता, मुलाकात का दिन बदलते बदलते। वाह वो भाई, वाह 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 वाह, जो हम मुशायरा करते थे उसका मुशायरा वाज रियली गुड टू। मुशायरा वो शो बड़े अच्छे गए, उसका कुछ सुना दीजिए। वो मैं आपको बताऊं, एक गजल है मुन्नी बेगम की, उस्ताद कमर जलाली साहब की, और मुझे उसका एक शेर बहुत अच्छा लगता है। अब नज़ा का आलम है मुझ पर, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो। अब नज़ा का आलम है मुझ पर, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो। जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। जाती हुई मैयत देख के भी अल्लाह तुम उठकर आ न सके। जाती हुई मैयत देख के भी अल्लाह तुम उठकर आ न सके। दो चार कदम तो दुश्मन भी तकलीफ गवारा करते हैं। कब मेरा नशेमन नहले चमन गुलशन में गवारा करते हैं। गुंचे अपनी आवाजों में बिजली को पुकारा करते हैं। तो शानी भाई that's what I'm talking about। तो अगर कोई आपसे मदद के लिए पूछे तो वो मदद के लिए पूछ रहा है, वो आपसे और किसी काम के लिए नहीं पूछ रहा। वो आपके ना तो आपके इश्क में गिरफ्तार होना है। नहीं मैं इश्क की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि अचानक इस तरह का फोन आया कि वो मेरा नंबर मेट्रो। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत सादत की बात होती है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस इज लाइक यू नो, आप जो कुछ भी समझें, बट अल्लाह ताला अपने खास लोगों को चुनता है जिनके जरिए। आपको याद है जब हम अमोर के पुराने वाले ऑफिस में थे? जी जी, वो वाकया है। मैं आपको बताऊं, एक बार हम अमोर के ऑफिस में थे, पुराने वाले ऑफिस के अंदर, और ऐसे ही मेरे फोन पे फोन आया, और मैं तो फोन उठाता नहीं, उस दिन मैंने उठा लिया। तो वहाँ मुझे पता चला कि उन लोगों ने खाना नहीं खाया, उनको कोई लोग परेशान कर रहे हैं। तो मैंने शानी से कहा, मैंने कहा शानी उनको कुछ पैसे दे के आओ, तो उन्होंने दे दिए। शानी ले जाकर उनको पैसे दे दिए। अच्छा फिर इसके बाद हम फिर बैठे हुए थे, 4 दिन के बाद फोन आया था, 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद दोबारा फोन आया कि भाई वो पैसे तो सब खत्म हो गए हैं और इस वक्त हम बैठे हुए हैं, हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया। उस वक्त हमने चाइनीज ऑर्डर किया हुआ था और हम तकरीबन 7, 8, 10 लोग थे और हम सब ने खाना था। तो लिटरली हमसे किसी से भी खाया नहीं गया, हमने रोक दिया खाने को। मैंने शानी को फिर कहा, शानी आप जाइए। शानी गया है, शानी ने वहाँ मुझे कंफर्म किया है। फिर जब शानी आए हैं तो फिर हमने खाना खाया। बट आई एम टेलिंग यू कि ऐसे काम शानी ने बहुत किए हैं और मेरे लिए तो बहुत किए, बेतहाशा किए, बेतहाशा किए। तो तुम्हें याद है वो बच्चा जिसको इंजेक्शन लगवाया करते थे, क्या नाम है? क्या नाम था उसका? उसका नाम था शहरयार और ये कुछ और था, शहरयार। तो वो ये डिलिजेंटली जाया करते थे, उसको इंजेक्शन लगवाया करते थे, फिर वहां से मुझे तस्वीरें वीडियोस बना के भेजते थे। तो आई मीन ही हैज डन सो मच, बहुत काम किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। था जिसके अंदर वो गूगल पे आई हुई थी, और बड़ी अजीब सी बात है। It's just horrible to even see that, and I hope कि better taste and better senses should prevail. यहाँ पर लिखा है, troll questioning शाहरुख खान's patriotism for hoisting the Indian tricolor as a new low. Very true. देखिए जो कुछ भी है, जाहिर है हिंदुस्तान शाहरुख खान साहब का मुल्क है, और इस वक्त you know ये जो अब देखें, ये आपको तो फेस करना ही है
ये सिर्फ अब कश्मीरियों की बात नहीं है, और ये जो एक नया लो है पूरे हिंदुस्तान के लिए, और ये एक चोट है. देखिए, आप मेरा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आप चाहे जितना मर्जी बकवास कर लें पाकिस्तान के बारे में, और ये मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो सपोर्ट करते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट को और मोदी को सपोर्ट करते हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ आप जितना भी बकवास कर लें हमारे बारे में, बट एक बात जरूर है, ना तो हम किसी की बेइज्जती करते हैं, ना हम आप किसी को डिसग्रेस करेंगे कभी, ना हम ये कहेंगे कि आपके पेट्रियाटिज्म पे हमें कोई डाउट है एंड ऑल दैट. हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते. आपके इतने बड़े बड़े एक्टर्स जिन्होंने हमेशा, और मुझे आई रिमेम्बर शाहरुख खान साहब ने जब चक दे इंडिया बनाई, और उससे पहले आई थिंक फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, तो ये सब अब आप उन्हीं की अगर पेट्रियाटिज्म को क्वेश्चन करेंगे तो ये बड़ी अजीब सी बात है. जस्ट बिकॉज ही इज अ मुस्लिम तो आप उसको क्वेश्चन कर रहे हैं. अच्छा, फिर आमिर खान की जो फिल्म है लाल सिंह चड्ढा, उसके साथ जो कुछ हुआ है, ऑन द कॉन्ट्ररी आई डोंट नो हाउ द फिल्म इज बिकॉज मैंने नहीं देखी, लेकिन मेरे ख्याल में होना ये चाहिए था कि दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन इन द फिल्म इंडस्ट्री, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी फिल्म है जिसके एक्टर को ऑस्कर अवार्ड मिला था, और ये उसका रीमेक है. आमिर खान हैज डन अ प्रीटी डिसेंट जॉब इन इट. जो रिव्यूज मैंने पढ़े हैं, जो ऑनेस्ट रिव्यूज पढ़े हैं, लेकिन ट्रोल्स को बाकायदा हायर किया गया और लाल सिंह चड्ढा को फ्लॉप करवाया गया, और इसी तरह से वो जो एक और फिल्म आई है रक्षाबंधन, उसको फ्लॉप करवाया गया और नई नई फिल्मों को इमर्ज करवाया गया. दिस इज फाइन, ये आपका अपना प्रोगेटिव है. लेकिन अभी इन्होंने, शाहरुख खान साहब ने कोई इंडियन फ्लैग होस्टिंग की थी, और उस पे भी ट्रोल्स आ गए और उस पे भी बहुत अजीब अजीब चीजें कहने लगे. ये वो तमाम हेट मॉन्गर्स हैं जिनका ताल्लुक किसी भी रिलीजन से, किसी भी मुल्क से नहीं है, और मेरे ख्याल में ये लोग क्या टॉलरेंस का सबक देंगे, ये लोग क्या मसला कश्मीर के अंदर बीजेपी को बैठने देंगे. देखिए, जिस जमात को पैदा ही आरएसएस ने किया है, आरएसएस ने बीजेपी को, मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता, लेकिन ये हेट मॉन्गर्स हैं, और ये एक कॉन्सेप्ट है हिंदुत्व का, ये उसके साथ हैं. अल्लाह ताला रहम करे इंडिया पे. इस वक्त तो बहुत, इंडिया की डेमोक्रेसी पे जितना बड़ा डेंट बीजेपी की गवर्नमेंट लेके आई है, इट डजंट रियली मैटर टू मी बिकॉज दैट्स नॉट माय वो. लेकिन जो डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया है, वो इस वक्त पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो रही है. अब ये नहीं है कि अब आप इसको छुपा सकोगे, अब आप इसको छुपा नहीं सकोगे. अब थोड़े दिनों के बाद, अभी तो ये क्वेश्चन सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में उठ रहे हैं ना, थोड़े दिनों के बाद ये क्वेश्चंस आपसे लोग करेंगे. फिर आपसे मसले कश्मीर पे भी यूएन बात करेगी, वो काउंसिल जो आपके बारे में कुछ नहीं बोलती. अब जितने बड़ी लॉबी कर लें, जितना बड़ा आप लॉबीस्ट ले आए, लेकिन अब वो आपसे बात करेगी. ये मैं आपको बता रहा हूँ, चंद दिनों की बात है, चंद महीनों की बात है. ये स्ट्रगल रायगा नहीं जाएगी. अगर हिंदुस्तान चाहता है कि वो अपनी डेमोक्रेसी को सिक्योर करे, तो आई थिंक उसको फिर ऐसे लोग लाने पड़ेंगे जो लेवल हेडेड होंगे, जो इनकी तरह से, मतलब ये तो बहुत क्लियरली एक मैसेज जा रहा है कि अगर आप, इफ यू आर नॉट अ हिंदू देन यू हैव नो राइट टू लिव इन इंडिया. ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो जा रहा है, और यू हैव टू से यस टू एवरीथिंग दैट बीजेपी इज सेइंग. तो आई होप एंड प्रे कि बेटर सेंसेस शुड प्रिवेल. वो पाकिस्तान से अगर बात करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, वी आर रेडी. लेकिन लेट्स टॉक अबाउट कश्मीर फर्स्ट. कश्मीर का जो, और ये अक्रॉस द बोर्ड आप किसी पाकिस्तानी से बात कर लें, एक स्टांस है उसका कि आप कश्मीर का जो पुराना स्टेटस है वो बहाल कर दीजिए, आइए टेबल पे बैठते हैं, आइए बात करते हैं. दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन. लेकिन अगर ये नहीं होगा तो फिर मसाइल हैं. लेकिन इस वक्त माई हार्ट गोज आउट टू एवरीवन जो इस हेट मॉन्गरिंग से गुजर रहा है. उसमें अक्षय कुमार हैं, उसके अंदर ऋतिक रोशन है, उसके अंदर आमिर खान है, उसके अंदर सलमान खान है, उसके अंदर शाहरुख खान है. ये तमाम लोग हैं. आई होप एंड प्रे कि बेटर सेंसेस शुड प्रिवेल. एटलीस्ट कुछ नहीं तो इन लोगों ने आपके लिए बहुत काम किया है, हिंदुस्तान के नाम को जगह जगह पहुंचाया है. थोड़ा सा आप लोग ख्याल कीजिए कि आप लोग क्या कर रहे हो. अपनी नफरतों को इतना आगे मत लेके जाओ. लेकिन ऑब्वियसली एजेंडा ही दूसरा है. वो एजेंडा ये नहीं है, वो एजेंडा ही दूसरा है. और अभी तो ये हेट जो है वो ट्रिकल डाउन होगी. तो अभी आपने इनको निशाना बनाया, अभी आम लोग तो वैसे निशाना बनते रहते थे, लेकिन अभी ट्रिकल डाउन होगी. लेकिन फिर इसके बाद जो इसकी रिटेलिएशन आएगी उसके बारे में ये लोग नहीं सोच रहे. ये रिटेलिएशन ट्विटर तक या फेसबुक तक महदूद नहीं रहेगी अगर इसको भी रोका नहीं गया. और मैं इसी से बहुत ज़्यादा फेयरफुल हूँ. और ये बहुत तकलीफ दे अमर होगा, क्योंकि लोगों को इस हेट पे उकसाना नहीं चाहिए. और आई होप एंड प्रे कि चीज़ें बेहतर हो जाएं और कुछ बेहतर लोग जो हैं वो आगे आएं और आगे बढ़ के लोगों को वहाँ काम डाउन करें, उनके जज्बात को काम डाउन करें और ये गेम समझें जो हेट मॉन्गर्स की हो रही है. ये बड़ी गलत है, ये सही नहीं है और ये आगे चल के भी ठीक नहीं होगी. अगर नॉन टॉलरेंस बिहेवियर है
तो ये कहीं भी बेहतर नहीं है. पाकिस्तान के अंदर होगा तो वो भी अच्छा नहीं है. अगर हम एक देखिए, मैं तो पाकिस्तान को सबसे पहले कहता हूँ ना कि हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ ये जो ट्रोलिंग होती है ये नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए. इनफ, बस हो गया ना. अभी अपनी बात को आप भी कहिए, हम भी कहें, लेकिन इस फियर मॉन्गर करके या हेट मॉन्गर करके नहीं. बहुत नॉर्मल बात होनी चाहिए, बहुत ढंग की बात होनी चाहिए. यू नो, एक दूसरे से डायलॉग्स होने चाहिए. वी डोंट हैव टू बी nasty about things. We don't have to be. Am I right or wrong? All right जी. But anyways, nonetheless, सर आपके जमाने में सबसे हसीन हीरोइन कौन थी जिनको आपने बहुत पसंद किया? ज़ेबा बेगम. ओके. और हिंदुस्तान में? वजंती माला. हैं? नो नहीं होंगे. वजंती माला बिल्कुल थी. She was very beautiful. मधुबाला. आप उस जमाने के हैं? मधुबाला. हाँ, तकरीबन. जी. तकरीबन. You know, my dad used to tell me कि मधुबाला बहुत खूबसूरत है. सॉरी, कल से मैं आपको अंकल कहूंगा. Because you know, that's what it is. I mean, come on. कहना शुरू कर दिया लोगों ने. शुक्र खुदा का. अच्छा, तो मधुबाला was very pretty. Okay. आपने हिंदुस्तानी फिल्म सिनेमा पे पाकिस्तान में देखी है? सर, आपके साथ ही पहले फिल्म देखी थी. वो तो डबल जो अभी दोबारा जो आती है, मुगल आजम ना. नहीं, वो नहीं. उससे पहले जब पाकिस्तान में लगती थी इंडियन फिल्में. नहीं, उससे पहले देखी नहीं. उस जमाने में था तो मैं छोटा, लेकिन थोड़ा सा. क्योंकि मैंने सुना था कि हिंदुस्तानी फिल्म पाकिस्तान में लगती थी. जी, लगती थी, बिल्कुल आमने सामने लगती थी. और आई थिंक 71 के बाद खत्म हो गई थी लगना, या 65 के बाद. 65 के बाद फिर उसके बाद नहीं लगी. जी. ओके. मैं हल्का सा आमने सामने लगती थी. तो हमारी फिल्मों ने जिस जमाने में से चकोरी वगैरह ने हिंदुस्तानी फिल्मों की मौजूदगी में इतने बड़े स्कोर्स किए. चकोरी हिंदुस्तान की मौजूदगी में नहीं आई. चकोरी बाद की फिल्म है. 65 के बाद की है. 67 की है. हाँ, नहीं, लेकिन उससे पहले की फिल्में जो थी, तेरी याद वगैरह, कोयल, ये सब फिल्म ये आमने सामने लगी. बड़ा वाओ, जबरदस्त यार, जबरदस्त फिल्म थी. इश्क लैला थी. इश्क लैला, ऑफ कोर्स इश्क लैला बहुत. ये वो फिल्म है जो यादगार फिल्म है, जो आज तक ऐसी फिल्में बनी नहीं है. हाँ. इश्क लैला ऐसी फिल्म थी, जबरदस्त. अच्छा, गैर मुल्की जो हीरोइंस थी उनमें आपने किसको पसंद किया हॉलीवुड के अंदर? हॉलीवुड में मुझे बहुत सारी लेडीज की नाम ही याद नहीं मुझे. अच्छा, नहीं, जो कोई एक तो याद होंगी. मैं 2-4 के नाम. जूलिया रॉबर्ट्स हैं. जूलिया रॉबर्ट एक फिल्म, एंथोनी बंडारस की फिल्म थी. एंटोनियो बंडारस की फिल्म थी एक. वो जूलिया रॉबर्ट्स? नहीं, जूलिया रॉबर्ट नहीं थी. एक मैक्सिकन हीरोइन थी. सलमा हायक. You like Salma Hayek? सलमा हायक. वो अब भी हैं. अब भी हैं. So you like Salma Hayek? I don't know which film. बंडारस फिल्म थी. बंडारस फिल्म नहीं थी. कौन सी? बंडारस कोई फिल्म नहीं थी. Desperado होगी. Desperado. Was it Desperado? Oh yeah. Desperado was the first film of Antonio Banderas in Hollywood. और वो उनकी एंट्री थी और कमाल थी. इसके बाद आई थिंक ही गॉट मैरिड टू मेलेनी ग्रिफिथ, और फिर वो शादी बहुत अरसे तक चली थी. बट ही इज रियली गुड. ही इज वेरी वेरी कूल. और उसके बाद उन्होंने जोरो भी बनाई थी ना. जोरो. आई थिंक जोरो was the film. I don't know, जोरो था या कोई था. उसमें कैथरीन ज़ेटा जोन्स थी. मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है. कैथरीन ज़ेटा जोन्स वो भी बहुत अच्छी थी. बट मेरे लिए हमेशा एलिजाबेथ हर्ली was the one, and then स्कारलेट जोहानसन अभी जो है, एंड गैल गॉडॉट जो उसमें है ना, वंडर वुमन, गैल गॉडॉट, तो वो भी बहुत अच्छी है. बट स्कारलेट जो इज द बेस्ट. स्कारलेट जोहानसन इज रियली 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 गुड. लूसी, द ब्लैक विडो, तो दैट तुमने देखी है फिल्में? नहीं देखी? बहुत सारी फिल्में देखी है सर. हर फ्राइडे को वहाँ भी रिलीज होती थी फिल्म, और हम जाते थे. कहाँ जाते थे? विक्टोरिया मॉल में, 6 सिनेमा, जिस तरह से इस तरह के. हाँ. और आप जरूर जाके देखते थे? जी. हमारा मैनेजर था वो, माशाल्लाह, वो रोजाना जो फिल्म आ रही है देख ली, आज ये देखनी है. वाकई? हाँ, यस सर. अच्छा, वहाँ इंडियन भी देखते थे आप फिल्में? इंडियन भी और पाकिस्तान. इंडियन और तो वहाँ इंडियन कौन सी देखी थी फिल्में? इंडियन पहली फिल्म देखी मैंने शाहरुख खान की फिल्म थी. कौन सी? फिर कनाडा में देखी मैंने, परदेस. किसी रोज तुमसे क्या फिल्म है, मुलाकात होगी. फिर देखी दिल से. ओ अगेन भाई. फिर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. अच्छा, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएं इससे पहले की फिल्म है? पहले फिल्म है, लेकिन मैं आपने देखी बाद में? ओके, DDLJ बाद में देखी आपने. ओके. उसके बाद ह्यूस्टन में देखी थी देवदास. बट देवदास जो दिलीप कुमार साहब की है ना, वो बड़ी कमाल है यार. वो अगर आप देख लेना, इट इज रियली अ ब्यूटीफुल फिल्म. देवदास 3 मरतबा बनी है,
और इट इज अमेजिंग अमेजिंग, तीनों मरतबा बहुत अच्छी बनी है. बट मुझे उसकी जो सेकंड वर्जन है जो दिलीप कुमार साहब का है वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत जबरदस्त वर्जन था वो. इट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल फिल्म. एक मैंने इरफान खान साहब की फिल्म देखी थी करीब करीब सिंगल, उनकी लास्ट फिल्मों में से एक है, वो बहुत खूबसूरत थी. एक उनकी फिल्म थी लंच बॉक्स. लंच बॉक्स वाज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. लंच बॉक्स वाज अमेजिंग. और अगर आप लोगों ने फिल्म नहीं देखी, एक आपको ऐसी बता रहा हूँ, एक फिल्म है स्टैनली का डब्बा, जरूर देखिएगा. स्टैनली का डब्बा. और एक और फिल्म है निल बटा जीरो, जरूर देखिएगा. ये अनकन्वेंशनल फिल्म्स हैं लेकिन इनको जरूर देखिएगा. एक इरफान खान की एक और फिल्म है पान सिंह तुमार, वो जरूर देखिएगा. ये फिल्में बहुत अच्छी हैं. और एक अभी एक रिसेंटली एक फिल्म आई है, इट्स कॉल्ड वेडिंग सीजन, तो वो भी जरूर देखिएगा. प्रीटी डिसेंट एक्चुअली, अच्छी है. और यू नो लंदन नहीं जाऊंगा, जरूर देखिए, जरूर देखिए. कायद आज़म जिंदाबाद जरूर देखिए. लफंगे जरूर देखिए. सपोर्ट पाकिस्तानी फिल्म्स. अभी एक ट्रेलर आया है द लेजेंड ऑफ मौला जट का. आई लव्ड इट, आई लव्ड इट, आई लव्ड इट. Mahira looked beautiful, Umayma looked beautiful, you know, Hamza looked amazing, and of course Fawad looked just phenomenal. I'm really looking forward to seeing these movies. I love you guys. Khuda Hafiz. कल मिलते हैं, तब तक के लिए good night. This is Mira FM 107.4.